Hello dear RBI Grade B aspirants and welcome to EduTab. So guys, we've started this series to cover all the chapters for your preparation for RBI Grade B Phase 1 exam for English language in the year 2026. The purpose of this series is to basically provide you free content for your preparation if you're preparing on your own, and this is to help you in your journey ahead to see what topics are important, how to cover, what are the important concepts of those chapters, and then what should be understood in every chapter. So guys, this will help you in your preparation and in your journey ahead, and this will definitely guide you in the right direction. But if you want to prepare on your own speed, and if you need all the practice material and all the support system that everyone needs for this, for their preparation, now you can enroll in our courses and you can join us and streamline your preparation. The link for our courses is although given in the description of the video, but let me show you a very simple way of going about it. Now guys, you just need to visit your browser and type edutap.in. आप अपने ब्राउजर पे जाइए और टाइप करिए edutap.in and press enter, and you will land on our home page. Now this is our home page. Now you'll see all the courses that we offer available to you. Now the first tab is RBI Grade B courses. Now click on this and you'll be redirected to our RBI Grade B page. Now you'll see the courses available to you. We have test series for phase 1 and phase 2, and then we have a silver course for only phase 2 preparation. But this is a one-stop solution for all your needs. Now guys, this is the gold course for your RBI Grade B preparation. It includes everything from phase 1 to phase 2 to interview preparation, everything that you need from the very scratch. So it encompasses live classes for all the subjects for phase 1 as well as phase 2, concept classes in recorded forms, concept notes, summary sheets, mock tests, current affair magazines, solved previous year questions, chapter wise test for every subject, sectional mock test for both the phases, current affairs mock test, and then full length test for both the phases. So this is a one-stop solution for all your needs. And guys, we are offering special discount on these courses. You can use the coupon codes available here and you can avail the benefits of these courses. So guys, come join us, streamline your preparation. And guys, now let's begin with the chapter be in English. Okay, so this is the first lecture, and today we will be covering two very important components of the cornerstones of English language, जिसको हम बोलते हैं parts of speech and structure of sentences. ये बिल्कुल basic से चले guys. तो coming back to the session, शुरू करते हैं गाइज. तो सबसे पहले लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स ऑफ ऑफ द लैंग्वेज. सबसे पहले गाइज आपको एक चीज समझना है कि इंग्लिश जब आप प्रिपेयर करते हो तो वी कैन नॉट कंसेप्चुलाइज इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट. समझना एक चीज कि इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है गाइज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है. ठीक है, और लैंग्वेज को सीखना सिर्फ ऐसा नहीं होता कि 15 चैप्टर पढ़ लिए या ये इतने 100 रूल कर लिए तो आपकी इंग्लिश मतलब ठीक हो जाएगी. इट डजंट वर्क दिस वे. इंग्लिश इज बिल्ट अप ऑन कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, और इसे कॉन्सेप्ट्स प्लस देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट कम इनटू प्ले, बट ऑल थिंग्स विल कम टुगेदर एंड दैट विल इंप्रूव योर लैंग्वेज. तो इंग्लिश के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं गाइज जो हमने यहाँ पे कवर करने हैं. नंबर 1 इज योर ग्रामेटिकल पार्ट, ग्रामर पार्ट, जो आपका फाउंडेशन है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का. सेकेंड इज योर वोकैबुलरी, जिसमें आपको वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये पता होना चाहिए. एंड थर्ड इज योर कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स. अब कॉम्प्रीहेंशन इंक्लूड्स योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, close test, parajumbles, rearrangement. So these are the 3 components that are asked to you in the exam. So these are the broad verticals that we need to understand, that we need to prepare for this exam. Now we will start from the first vertical, grammar. Then we will move towards your comprehension, and slowly and gradually we will build up our vocabulary. Vocabulary के तो इतने detailed session नहीं कर पाएंगे हम, because time उतना नहीं extensive होता. But हाँ, grammar और comprehension ये दोनों component हम यहाँ पे detail में cover करने वाले हैं. Now why do we begin from ग्रामर? बिकॉज अगर आप अगर हम एक पेड़ की बात करते हैं तो लेट मी पुट इट इन सिंपल टर्म्स, तो जो फाउंडेशन है, जो जमीन के नीचे है, जहां से आपको सारा कॉन्फिडेंस मिलता है, वो होगी आपकी ग्रामर, जो आपको कॉन्फिडेंस देगी आपकी लैंग्वेज के अंदर. वो फिर बिल्डअप होके और एक पेड़ की तरह निकलेगा. एंड द स्टेम विल बी योर कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी, जहाँ पे आपको चीज़ें समझना आसान होता है, आपको समझ के उनको पढ़ना और कॉम्प्रीहेंड करना आसान होता है. दैट वुड बी योर कॉम्प्रीहेंशन. एंड द ब्रांचेस एंड द लीव्स will be called your vocabulary. The better the wider your branches, the more branches you have, the more leaves you have on the branches, the better will be your vocabulary, and everything will come into play. So you can understand it in this way. Okay? This is like this is like budding a new
tree here. So you start from the, you start from the seed, the underground part, which is grammar. Then you nurture it by by giving it water, and in this case by reading something on a daily basis, which buds out and improves your comprehension. And later on, when you see the real growth, you will see your vocabulary growing and developing along with it. So this is how we are going to complete it in this way. So please pardon me for my drawing, but I hope you understand what I'm trying to convey here. So we'll start from the very basic foundation of the language, which is grammar. अब ग्रामर गाइज हमने बचपन से पढ़ी है, हमें बहुत साल आई थिंक स्कूल लेवल में हमें सिखाई भी गई होगी बहुत बार, राइट? जैसे कि अगर हम बात करें थर्ड फोर्थ क्लास में ग्रामर शुरू हो जाते हैं, और आई थिंक 10th क्लास तक तो आपके एग्जाम में भी आती है, राइट? बट उस ग्रामर में आपको कितना याद है, वो कितना यूज़ करते हो आप अपनी डेली लाइफ में? कभी आप इंग्लिश बोलते हुए सोचते हो, मतलब उसका टेक्निकल पार्ट सोचते हो कभी आप, कि ये एडजेक्टिव है, ये प्रपोजिशन है, ये कंजंक्शन है, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये क्लॉज है, क्या है? अगर आप वो टेक्निकलिटी नहीं जानते तो फिर आप जो इंग्लिश यूज़ कर रहे हो वो आपने कैसे सीखी है? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर डे टू डे लाइफ यूजेज, जो आपने इधर पढ़ लिया, किसी से सुन लिया, राइट? सो दैट इज द मोड ऑफ लर्निंग दैट वी हैव कम अक्रॉस. बट नाउ वी नीड टू बिल्ड इट अप फ्रॉम द वेरी स्क्रैच. तो बिल्कुल फाउंडेशनल लेवल से हमें इसको शुरू करना है. आप तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फाउंडेशन. अब फाउंडेशन क्यों ज़रूरी है गाइज? सी, इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ लॉन्ग लास्टिंग हाउस, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग होम, अगर आपने एक ऐसा घर बनाना है जो बहुत टाइम तक खड़ा रहे, स्ट्रॉन्ग खड़ा रहे, कोई आंधी आए, तूफान आए, मुश्किलों में आए, तो इट स्टेज स्ट्रॉन्ग, तो उसके लिए क्या ज़रूरी होती है? आपके घर की फाउंडेशन बहुत ज़रूरी होती है. अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है घर की, तो योर हाउस विल नॉर्मल डेज इट मे स्टैंड, बट ऑन डेज ऑफ ट्रबल, ठीक है, जिस दिन आंधी तूफान आएगा उस दिन वो ढह जाएगा. और आंधी तूफान किस दिन आने वाला है? एग्जाम वाले दिन. तो आप समझना हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं. तो आई विल बी गिविंग यू एनेक्डोटल एग्जांपल्स जिससे आप इसको रिलेट कर पाओगे. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कंपोनेंट हेयर, ग्रामर, देन वी विल मूव टुवर्ड्स कॉम्प्रिहेंशन. और मेरा आपको सजेशन क्या है वोकैबुलरी के लिए? व्हाट यू नीड टू डू इज गाइज, यू नीड टू स्टार्ट रीडिंग समथिंग. स्टार्ट विद अ रीडिंग हैबिट, ठीक है? डेली कुछ पढ़ा करो. अगर आप डेली एडिटोरियल आर्टिकल कुछ ना कुछ नहीं पढ़ते हो, तो आप ये समझना गाइज, यू आर नॉट एक्चुअली लर्निंग समथिंग न्यू. आप नया कुछ भी नहीं सीख रहे हो, आप उसी पे डिपेंडेंट हो जो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, एंड दैट माइट नॉट बी इनफ. तो एडिटोरियल रीडिंग में क्यों कहता हूँ बहुत ज़रूरी है? वो आपकी जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स को तो इंप्रूव करती है, बट उसके साथ साथ आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल्स, उसके साथ साथ आपकी कॉम्प्रिहेंशन पावर, जिसको हम बोलते हैं कि कोई चीज़ पढ़ के उसको समझना, उसके साथ साथ आपकी वोकैबुलरी, आपकी आर्टिकुलेशन स्किल्स, ड्राफ्टिंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं, क्योंकि फेज 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर आता है. अब उसके लिए जो इंग्लिश आपको सीखनी है वो कहाँ से आएगी? वो यहीं से सीखोगे आप. ये नए नए फ्रेजेस, प्रेजेंटेशन स्टाइल, ये सीखी जाती हैं आपकी डेली रीडिंग हैबिट से. तो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए एक रीडिंग हैबिट शुरू करना. अगर आप आज से भी रीडिंग हैबिट शुरू करते हो गाइज, यू हैव एम्पल टाइम टू इंप्रूव योर लैंग्वेज. ये मत सोचना कि सर अभी शुरू करके क्या फ़र्क पड़ जाएगा. नहीं, यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस विद इन 30 to 40 डेज. तो अब लेकिन लगातार करके देखो, यू विल बिल्ड अप अ हैबिट एंड इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. और मैं तो हमेशा ही क्या बोलता हूँ हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, कि एक फॉर्मूला याद रखो. कोई भी आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, ठीक है? पहले अपने आप को डिजर्विंग बनाओ. और डिजर्विंग बनाने के लिए गाइस आपको क्या समझना है कि अगर यार आपको यही नहीं पता आपके आसपास हो क्या रहा है, ठीक है, क्या है आरबीआई की फंक्शनिंग, क्या है इकोनॉमी की हालत, क्या है जीडीपी रेशो, क्या है पर कैपिटा इनकम, अगर आपको ये चीज़ें बेसिक नहीं पता और क्या इनमें चेंजेस आते हैं डेली बेसिस पे, क्या इसमें फंक्शन करता है आरबीआई, तो डू यू थिंक इट इज, आई मीन डू यू थिंक यू डिजर्व टू बी इन दैट चेयर? अगर आपके मन में आ रहा है सर बात तो ठीक कह रहे हो आपके, इफ़ द आंसर इज नो, कि सर जब तक हमें ये सब चीज़ें नहीं पता, ऑर्गेनिकली नहीं पता, तो आई डोंट थिंक वी डिजर्व टू बी इन दैट चेयर. वी डिजर्व टू सर्व द कंट्री ऑन दैट स्केल, ठीक है? अब ये समझना है आपको. तो अपने आप को डिजर्विंग बनाओ, और डिजर्विंग बनाने के लिए आपको अपने आसपास जो है वो पढ़ना पड़ता है. सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता. ये बच्चा एक बार गलती करके सीख जाएगा, एक बार पेपर देके सीख जाएगा, या तो वो गिव अप कर देगा कि यार मेरे तो बस की नहीं है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, पेपर बहुत मुश्किल है, 10 एक्सक्यूज़ दे देगा. या फिर जो बच्चा समझदार होगा वो सीखेगा और समझेगा कि हाँ यार, आई थिंक आई नीड टू वर्क हार्डर इन दिस, मुझे और डेप्थ में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा. और उस सबके लिए इंग्लिश इज अ यूजर इंटरफेस गाइस. समझना एक चीज़, इंग्लिश मैंने जैसे बोला ना, इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट फॉर फेज 1 और फेज 2. आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, चाहे फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है, करंट अफेयर्स है, कौन सी लैंग्वेज में पढ़ोगे आप? आई थिंक द आंसर इज इंग्लिश. तो अगर आपकी इंग्लिश ऑर्गेनिकली अच्छी नहीं है, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ व्हाट यू आर रीडिंग?
नहीं, जब तक आपको हर चीज प्रॉपरली समझ नहीं आती, यू विल नॉट ग्रास्प द अंडरलाइंग मीनिंग देयर, कि क्या कहना चाह रहा है वहां पे जो लिखी हुई है बात उसके अंदर। तो ये चीजें हैं जो आपको अब पकड़नी है और इसके साथ आपको अपनी प्रिपरेशन को बिल्डअप करना है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट वेयर वी आर लर्निंग, वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर प्रिपरेशन हियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रामर पार्ट। ठीक है, अब ग्रामर हमने बहुत साल पढ़ी है, बचपन से गई, बार बार पढ़ी है, स्कूल में एग्जाम में भी आई है, लेकिन हमें याद कुछ भी नहीं रहता उसमें से। रीजन बीइंग, क्योंकि डेली लाइफ में कोई ग्रामर को आपको टेस्ट नहीं करता, राइट, और उनको इतना फोकस भी नहीं किया जाता। लेकिन अब इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके साथ साथ ग्रामर तो यार वो चीज़ है जो आपको कोई भी सेंटेंस, चाहे आपका वोकेबुलरी का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन क्यों ना है, लेकिन वो सेंटेंस तो पढ़ना ही पड़ेगा ना जिसमें फिल इन द ब्लैंक है, उसको तो आपको असेस करना पड़ेगा, उसमें तो देखना पड़ेगा। तो टू एक्चुअली नो व्हाट ग्रामर इज ऑल अबाउट, वी आर गोइंग टू टीच यू हेयर कि आपको कैसे, हाउ कैन यू कंट्रोल योर लैंग्वेज। अब तक आप जो लैंग्वेज आपने सीखी है ना, वो कहीं से एक्सटर्नल फैक्टर से सीखी है, लेकिन अब आप सीखोगे इंटरनल फैक्टर से, कि मुझे भी ग्रामर और इंग्लिश आती है और आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, के दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है और गलत है तो क्यों गलत है। ये नहीं कि सिर्फ गलत सुनने में लग रहा है सर, उसके पीछे का रीजन नहीं पता तो you'll नेवर बी श्योर। ठीक है, तो ग्रामर शुरू करते हैं गाइज आज अपनी। तो वी विल बी कवरिंग ग्रामर इन दिस सेशन टुडे, and I'll also teach you parts of speech as well as structure of sentences। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइस। तो मैं आई एम नॉट जजिंग, तो मैं मान के चलता हूँ बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं हम इंग्लिश को ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक से, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हैं। तो सबसे बेसिक क्या है इंग्लिश में गाइस, सबसे स्मॉल लेवल पे क्या आता है। ठीक है, अब ABCD तो नहीं पढ़ेंगे, अब ABCD से तो ऊपर आ जाते हैं। सबसे सिंपल लेवल में क्या आता है, वर्ड्स, राइट, जैसे मतलब एप्पल, बैट, कैट, रैट, राइट। अब ये वर्ड्स आते हैं। अब कितने वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, देर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ वर्ड्स, 3.5-4 लाख वर्ड है। तो इफ यू एक्सपेक्ट कि आप सारे वर्ड याद कर लोगे, दैट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। पे कंप्यूटर नहीं है, मशीन नहीं है कि फीड करना है बस, राइट। तो यू नीड टू यूज दोज वर्ड्स टू रिटेन देम, राइट। तो वो यूजेज आपको सीखना है एंड यू नीड टू स्टार्ट कंट्रोलिंग देम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यार 3.5-4 लाख वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो अब कैसे सीखें आप इतने सारे वर्ड्स को सर। क्वेश्चन तो, बात तो वैलिड है कि इतने सारे वर्ड्स को याद करना पॉसिबल है, नो इट्स नॉट। तो फिर कैसे सीखें इतने सारे वर्ड्स, हाउ डू वी रिटेन एंड हाउ डू वी ग्रो आर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। तो उसके लिए आपको अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग बनानी है, और वो फाउंडेशन कैसे स्ट्रांग बनानी है अब आपको समझाता हूँ। देखना गाइस, जब इंग्लिश लैंग्वेज बनी, हर लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर होता है गाइस। हिंदी का भी ग्रामर है जिसको हम व्याकरण बोलते हैं, इंग्लिश का ग्रामर है, हर लैंग्वेज का ग्रामर होता है। वो बेसिक गाइडलाइंस होती हैं बेसिकली उस लैंग्वेज को यूज करने की। वो गाइडलाइंस हमें सिखाई तो गई, बट किस तरह से सिखाई गई स्कूल में, रटने के हिसाब से, कि रटा दिया जाए ताकि बच्चा रट के याद रख ले। लेकिन हर चीज रटने से याद नहीं रहती है इस लाइफ में, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड देम प्रैक्टिकली। तो आज आपको ना एक कहानी सुनाता हूँ गाइस, मतलब इट्स जस्ट अ एनेक्डोटल स्टोरी, एक कहानी जो मैंने बनाई हुई है अपनी तरफ से, जस्ट टू मेक थिंग्स इजी फॉर यू। तो यार कहानी सुन के अगर आप पूरी ग्रामर सीख सकते हो, अगला आधे घंटे में मैं आपको पूरी ग्रामर सिखाऊंगा गाइस, गारंटी है, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। लेकिन आपको फोकस करना है और अपने ध्यान रखना है, पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, और आपको कैसा लगा ये सेशन, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डू लेट मी नो कि आपको अच्छा लगा, बोरिंग लगा, मैं कुछ इसमें बेटर कर सकता था। तो योर इनपुट्स आर ऑलवेज वेलकम एंड योर फीडबैक इज ऑब्वियसली चेरिश्ड बाय अस। तो शुरू करते हैं गाइस। तो अब क्वेश्चन क्या है गाइस कि इंग्लिश लैंग्वेज में लाखों वर्ड्स हैं, तो उनको कैसे सीखा जाए, कैसे याद रखा जाए। अब जब इंग्लिश लैंग्वेज बनी तो उनको ये चीज़ पता थी जिन्होंने लैंग्वेज बनाई कि यार बहुत सारे वर्ड्स हैं और भी बहुत सारे वर्ड्स जुड़ने वाले हैं विद टाइम इसके अंदर। तो हम कैसे डिसाइड करें कि मतलब कैसे हम डिफाइन करें अपनी लैंग्वेज की बाउंड्रीज को, और कैसे लोगों को हम कन्विंस करें कि आप ये लैंग्वेज बड़े आराम से सीख सकते हो। तो उन्होंने एक बड़ा स्मार्ट एक काम किया, देखना क्या किया उन्होंने। क्या था, जो इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स थे ना, उनको ग्रामर के अंडर क्या किया, सेग्रीगेट करना शुरू कर दिया। सेग्रीगेट करने का मतलब क्या है, जो एक जैसे वर्ड थे उनको एक कैटेगरी में डाल दिया, जो दूसरे एक जैसे वर्ड थे उनको दूसरी कैटेगरी में डाल दिया, जो तीसरे वर्ड थे उनको तीसरी कैटेगरी में डाल दिया। ऐसे ही फोर्थ जो एक जैसे वर्ड थे उनको फोर्थ कैटेगरी में डाल दिया, फिफ्थ कैटेगरी में डाल दिया, सिक्स्थ कैटेगरी में डाल दिया, सेवन्थ कैटेगरी में डाल दिया, और लास्ट उन्होंने क्या किया, एट्थ कैटेगरी में डाल दिया। तो उन्होंने क्या किया गाइस, बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स थे ना, उन्होंने उनको 8 कैटेगरीज में सेग्रीगेट कर दिया। ठीक है, ताकि
अब आज के बाद कोई अगर इंसान इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहे तो उसको पूरी लैंग्वेज मतलब पूरी डिक्शनरी रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ ये 8 कैटेगरी सीख जाओगे तो आप पूरी लैंग्वेज की फंक्शनिंग सीख जाओगे। उनका पर्सपेक्टिव ये था। तो उन्होंने क्या किया, इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स थे उनको उन्होंने 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया। और अब क्या कहा कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है ना तो ये 8 कैटेगरी सीख लो, आप पूरी लैंग्वेज को सीख जाओगे और उसके बाद जितना आप लैंग्वेज को पढ़ोगे उतना ही आप इसको ग्रास्प करते रहोगे, उतना ही आपकी ये कमांड जो है लैंग्वेज पे वो बेटर होती रहेगी। तो उन्होंने, आप समझ रहे हो क्या करें, इंग्लिश डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स हैं, समझना गाइस, सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ, इंग्लिश डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स हैं वो इन 8 कैटेगरीज में डिवाइडेड रहते हैं। मतलब वो इन 8 कैटेगरीज में से किसी ना किसी एक कैटेगरी में जरूर आते हैं, समझना। इन 8 कैटेगरीज के अलावा और कोई मतलब कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो इन 8 कैटेगरी से बाहर रह सकता है। तो अगर आपको ये 8 कैटेगरी समझ आ गई, आप हर वर्ड को कंट्रोल कर पाओगे इसके साथ। अब यही 8 कैटेगरीज, क्या सर हमें 8 कैटेगरीज नहीं पढ़ाई गई हैं आज तक? ये पढ़ाई गई हैं, बट मैंने जैसे बोला ना, बचपन में आपको रटाने के लिए जो चीजें सिखाई जाती थी उस पर्सपेक्टिव में पढ़ाई है। लेकिन अब हम सीखेंगे इनको प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में, कि जहां से हम प्रैक्टिकली इनको याद रख पाए। और अब मैं भी रटाने की कोशिश नहीं करूंगा, आई ट्राई टू मेक इट सिंपल एंड ईजी फॉर यू टू रिटेन। तो उसका तरीका क्या है गाइज? निमोनिक्स बनाना। अब ये बहुत अच्छा तरीका होता है अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करके, ठीक है। अब निमोनिक्स हमें बचपन से याद कराए गए हैं, बट हमें मे बी हमें उनकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आई। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री याद है? स्कूल में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे। ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा आता था। उसके फॉर्मूला कैसे याद रखते थे आप? याद है वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या सोना चांदी तोले, या कुछ स्कूल में ऐसे भी सुना है मैंने बहुत बच्चे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, जो है ही एक्चुअली में, बट पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे करके। तो ऐसे बहुत सारे निमोनिक्स बनते थे। या और छोटे आ जाओ, हमें वो जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के नेम्स कैसे याद कराते थे? याद है कि सीक्वेंस में कैसे याद करना है? माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स, ऐसे करके सिखाते थे। माई से मतलब मरकरी, वी से वेरी से मतलब वीनस, एजुकेटेड से अर्थ, मदर से मार्स, ऐसे करके हमें सिखाते थे। या और छोटे आ जाओ, बचपन में रेनबो के कलर्स कैसे याद कराते थे सीक्वेंस में आपको? याद है? विबग्योर। विबग्योर क्या था? वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ऐसे ये जो निमोनिक्स होते हैं ना, ये आपके दिमाग में ऐसे घर कर जाते हैं, जो आप देख लो 20 साल बाद मैंने आज उसका नाम लिया लेकिन आपको याद है। तो ये फंक्शन, ये रोल होता है निमोनिक्स का। मतलब एक ऐसा शॉर्टकट दे दिया कि बच्चा उसको जिंदगी भर याद रख पाए। तो आज कुछ ऐसा ही शॉर्टकट आपको देता हूँ जिससे आप पूरी जिंदगी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज याद रख पाओगे और आपको कभी आज के बाद इंग्लिश में डर नहीं लगेगा। तो अगर आपको सच में ये फीलिंग आए कि हाँ सर, आपने बहुत बड़ी वो अपने जो दिमाग में मतलब जो डिलेमा था, जो प्रॉब्लम थी, वो आपने दूर कर दी आज, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम ज़रूर ले रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रेक द आइस विद यू। तो ये मत समझना कि बहुत बच्चे करने लग जाते हैं, पहली 5 मिनट तो वेस्ट हैं, पहले 10 मिनट में तो सर बकवास कर रहे हैं। ठीक है, दिस टाइम इज़ टू lure you in and to to build up that understanding कि अब now you trust me a little, कि हाँ यार सर जो कुछ कह रहे हैं वो उसका काम, उसमें कुछ काम की बात होगी, राइट। तो उस तरह से आपको पढ़ाता हूँ। तो शुरू करते हैं गाइज अपने आज का अंडरस्टैंडिंग कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज के हम जितने भी वर्ड्स हैं हम उनको कैसे याद रख सकते हैं। तो आज एक कहानी सुनाता हूँ आपको, और कहानी की हेल्प से आपको मैं पूरी ग्रामर याद करा दूंगा अगले आधे घंटे में, और गारंटी लेता हूँ जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। बस ध्यान से सुनना, अपना फोकस यहाँ रखना, सिर्फ अगला आधा घंटा मांग रहा हूँ आपसे। तो कहानी कुछ ऐसे है गाइज। अब मैंने आपको क्या बताया, इंग्लिश लैंग्वेज में लाखों वर्ड्स हैं, 3.5-4 लाख वर्ड्स हैं, और उन्होंने क्या किया है, इन सभी वर्ड्स को 8 कैटेगरीज में सेग्रीगेट किया हुआ है और आपको कहा कि ये 8 कैटेगरी सीख लो, आप हर वर्ड को कंट्रोल कर पाओगे। अब ये 8 कैटेगरीज को कैसे सीखा जाए, मैं आपको कहानी से समझाता हूँ गाइस। कहानी कुछ ऐसी है जिससे आप रिलेट भी कर पाओगे, ठीक है। तो कहानी में क्या होता है गाइस, एक बार ना एक क्लास होती है स्कूल में, अपनी जैसे क्लासेस होती है ना, एक कहानी बना रहा हूँ गाइस, इट्स अ फिक्टिशियस स्टोरी, मतलब मनगढ़ंत कहानी है, कोई सिर पैर नहीं है इसका, बट हाँ आपको ग्रामर में बहुत हेल्प करेगी ये चीज़, ये याद रखना। तो कहानी कुछ ऐसे है, एक बार एक क्या बोलते हैं, एक क्लास, मतलब स्कूल में ना एक क्लास होती है, उस क्लास मतलब इंग्लिश की क्लास होती है, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, ठीक है। अब बच्चों का क्या होता है, अब कहानी सुनना गया और इसको इन्वॉल्व होना, इसमें जुड़ना है इसके साथ। अब क्लास है, अब ये बच्चे देखो, बच्चे जब तक छोटे होते हैं ना तब तक तो वो ठीक रहते हैं, मैनेजेबल होते हैं, लेकिन जब वो अपनी अडोलेसेंस में आ जाते हैं तो उनका नेचर एकदम से रेबेलियस और शरारती और मतलब मिस्चीवियस हो जाता है, राइट, कुछ नई शरारत करें। तो ये उसी एज के बच्चे थे, अडोलेसेंस वाले। और अब कहानी सुनना क्या होती है, तो होता क्या है गाइस, एक अब इसी क्लास की बात कर रहा हूँ, अब इस क्लास में टोटल 8 बच्चे पढ़ते थे, अब समझना, ठीक है। ये जो इंग्लिश की क्लास है इसमें टोटल 8 बच्चे पढ़ते थे। अब ना लेट मी रिलेटेड टू द
द व्हाट आई टोल्ड यू कि इस क्लास में टोटल 8 बच्चे पढ़ते थे, और ये 8 बच्चे कौन थे? दीज आर 8 कैटेगरीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो मैंने अभी आपको बताई ना पीछे यहाँ पे कि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज की जितने भी वर्ड्स थे उनको 8 कैटेगरीज में सेग्रीगेट कर दिया। अब उन्हीं 8 कैटेगरीज को मैं अपनी कहानी में यहाँ पे क्या बना रहा हूँ? बच्चे बना रहा हूँ, स्टूडेंट्स बना रहा हूँ, ताकि आप उससे रिलेट कर पाओ कहानी से, राइट? आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट सिंपलर एंड ईजियर फॉर यू टू रिटेन। तो होता क्या है गाइस, देखना इस कहानी में, इस क्लास में टोटल 8 बच्चे होते हैं, ठीक है? अब बच्चे यार हर तरह के बच्चे होते हैं, कहानी शुरू करता हूँ मैं। अब बच्चे हर तरह के होते हैं, कुछ शरारती भी होते हैं, कुछ शरीफ भी होते हैं, राइट? कुछ हंसमुख भी होते हैं, कुछ चुपचाप बैठने वाले भी होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, हर तरह का बच्चा होता है, राइट? तो अब उसी की कहानी अब सुनना गाइस, होता क्या है, इस क्लास में टोटल 8 बच्चे थे। अब ये 8 बच्चे कौन थे? दीज आर 8 कैटेगरीज ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी या इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपकी लैंग्वेज के सारे वर्ड्स आ जाते हैं, मतलब लिटरली आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में जितने वर्ड्स हैं उनमें से कोई ना कोई एक वर्ड इन, मतलब उनमें से हर वर्ड इनमें से कोई ना कोई कैटेगरी में जरूर मिलेगा आपको। इससे बाहर आपको एक वर्ड नहीं मिलेगा, याद रखना। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप पूरी लैंग्वेज को कंट्रोल कर पाओगे। तो होता क्या है कहानी में, इस कहानी में टोटल 8 बच्चे होते हैं, ठीक है? अब होता क्या है, जब ये अपनी अडोलेसेंस में आते हैं तो एक दिन एक बड़ा शरारती बच्चा होता है, वो क्लास में खड़ा होता है एक दिन, रिसेस में, रिसेस हो रही होती है ना, तो एक दिन वो क्लास में खड़ा होता है, सबके सामने जाता है और क्लास के सबके सामने खड़ा होकर बोलता है, यार सुनो यार, सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। बोला हाँ भाई बोल, क्या क्या हुआ बता। तो अब वो उस दिन क्लास में खड़ा होकर बड़ी सरप्राइजिंग बात बोलता है, कहता है यार अब हम बच्चे नहीं रहे, अब हम बड़े हो गए। बोला हाँ यार बड़े तो हो गए। बोला चलो फिर कुछ बड़ों की तरह काम करते हैं। बोला ठीक है, बता क्या करना है। तो वो क्लास में बोलता है कि आज से ना मैं अपना एक गैंग बना रहा हूँ। गैंग होते थे क्लास में, गाइस याद है स्कूल लाइफ में सबके अपने, अब गैंग मतलब वो नहीं गैंगस्टर्स वाले गैंग नहीं बोल रहा, अपने दोस्तों वाले गैंग। जैसे चार वो पीछे एक और बैक बेंचर वाला गैंग होता था, एक आगे बैठने वाला गैंग होता था, एक वो स्टूडियस वाला गैंग होता था, राइट? सॉरी। तो ये उसी तरह से गैंग बना रहा हूँ मैं, जस्ट टू मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। तो एक दिन एक बड़ा शरारती बच्चा होता है क्लास में, वो खड़ा होकर बोलता है आज से मैं अपना गैंग बना रहा हूँ। अब वो बच्चा कौन था? नाउन। सब ध्यान से देखना गाइस, नाउन क्या कहता है? नाउन बोलता है आज से मैं अपना गैंग बना रहा हूँ। तो सब पूछते हैं भाई तू क्यों गैंग बना रहा है, तेरे पास क्या क्वालिटी है, तू क्यों गैंग का लीडर बन रहा है? तो नाउन अब क्या बोलता है, देखना गाइस, नाउन बोलता है, देखना कि नाउन बोलता है कि मैं गैंग क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सब मेरे पास हैं। अब याद रखने की ट्रिक देखना गाइस, एन फॉर नाउन्स, ठीक है? नाउन्स होते क्या हैं? एन फॉर नेम्स, ठीक है? तो एनी नेमिंग वर्ड, कोई भी नाम जो है इंग्लिश लैंग्वेज में वो क्या होता है? नाउन। सिंपल रखना, न से नाम, एन से नेम, एन से नाउन, याद रखने की ट्रिक है ये। तो नाउन क्या होते हैं? नेम्स। एन से नाउन, एन से नेम, ये याद रखना। तो कोई भी नाम है इंग्लिश लैंग्वेज में वो क्या होता है? आपका नाउन, ठीक है? अब मैं बोलता हूँ रोहित इज अ गुड बॉय, इसमें नाउन क्या है? रोहित, ठीक है? मैंने तो रोहित किसी इंसान का नाम है। रीना इज अ स्मार्ट गर्ल, इसमें नाउन क्या है? रीना। तो रीना क्या है? किसी गर्ल का नाम है। हाँ जी। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इसमें नाउन क्या है? इंडिया। इंडिया किसका है? कंट्री का नाम है। तो देखना किसी भी इंसान का नाम है, रोहित, रीना, राहुल, सीमा, गायत्री, रोहिणी, प्रियंका, सब क्या है? नाउन्स। किसी भी इंसान का नाम है, किसी भी जगह का नाम है, इंडिया, चाइना, जापान, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, बंगाल, कोलकाता, एशिया, अमेरिका, अर्थ, जुपिटर, मार्स, सब किसी भी जगह का नाम है, छोटी से छोटी, चाहे गांव से ले लो, छोटी सी जगह या बड़ी से बड़ी, कोई भी जगह का नाम है। इफ इट्स अ नाउन, इफ इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस, इट्स अ नाउन। कोई भी ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग चीज का नाम है, चेयर, मोबाइल, कंप्यूटर, रोड, कार, एसी, फैन, लाइट, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट्स के नाम है, लेकिन नाम तो है। तो क्या है? नाउन। चाहे फ्रूट का नाम है, वेजिटेबल का नाम है, कोई भी नाम है यार, सिंपल टर्म्स में याद रखो, कोई भी नाम है इस दुनिया में जो एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है? नाउन। सिंपल एज दैट। तो कोई इंसान का नाम है, कोई जगह का नाम है, कोई भी चीज का नाम है, ठीक है? कोई भी इसके बियॉन्ड देखना गाइस, कोई चीज जो विजिबल नहीं है या मतलब जो रियलिस्टिक नहीं है, जैसे अपनी फीलिंग्स के भी तो नाम होते हैं। हैप्पीनेस फीलिंग का नाम है, दिखते ही नहीं है लेकिन नाम तो है। सैडनेस, ब्रदरहुड, मैनकाइंड, कल्चर, हेरिटेज, ये भी तो नाम है। सब्जेक्ट के नाम है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मतलब स्टेटिस्टिक्स, ये इकोनॉमिक्स, ये सारी क्या है? लैंग्वेजेस के नाम है। नाम ही नाम है यार इस दुनिया में, सोचो कितने नाम होंगे। फ्रूट के नाम है, पता नहीं सब्जियों के नाम है जो हम खाते हैं, पता नहीं हर चीज का नाम रखा हुआ है हमने। तो सिंपल टर्म्स में याद रखना, कोई भी नाम है, कोई भी नेम है इस दुनिया में वो क्या होता है?
नाउन, सिंपल एज दैट। मैंने बस आपको क्लासिफिकेशन समझा दी, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ थिंग, लिविंग, नॉन लिविंग, रियल, अनरियल, गॉड, गॉड का भी नाम तो रखा हुआ है ना हमने, लॉर्ड, लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा, नाम रखे हुए हैं। तो किसी का भी नाम है, चाहे वो रियल है, अनरियल है, एग्जिस्टिंग है, नॉन एग्जिस्टिंग है, जिस चीज को आपने नाम दे दिया वो क्या, वो वर्ड क्या होगा, नाउन। स्टार, यूनिवर्स, गैलेक्सी, गॉड, एयर, वाटर, वेजिटेबल, जूस, मैंगो, कुछ भी, हर चीज को हमने नाम दिया हुआ है, तो कोई भी नाम है वो क्या होता है, नाउन, सिंपल एज दैट। समझ आ रहा है? तो अगर मैं बोलता हूँ रोहित इज अ स्मार्ट बॉय, इसमें नाउन क्या है, रोहित। मैंने बोला रीना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, इसमें नाउन क्या है, रीना। मैंने बोला इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इसमें नाउन क्या है, इंडिया। वेरी गुड। बट अब इसका एक और कंपोनेंट आपको समझाता हूं, देखना गाइस, जब मैंने बोला रोहित इज अ स्मार्ट बॉय, मैंने बोला इसमें नाउन क्या है, आपने बोला सर रोहित, लेकिन मैंने एक और क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला रोहित तो ठीक है नाउन है, लेकिन बॉय क्या है यहाँ पे, क्या बॉय नाउन है या नहीं है? अब आप सोच रहे होगे हाँ सर बात तो ठीक है, रोहित तो समझ आ गया लड़के का नाम है, बॉय किसका नाम है? आपको समझाता हूँ, देखो बॉय भी एक नाउन है। अगर मैंने बोला रीना इज अ स्मार्ट गर्ल, तो रीना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, चलो इसमें नाउन क्या है, रीना तो नाउन है, वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन गर्ल क्या है, नाउन है या नहीं है? वो भी नाउन है। मैंने बोला इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, तो इसमें नाउन क्या है, इंडिया तो हमें समझ आ रहा है कि इंडिया हाँ सर नाउन है, लेकिन कंट्री, अब देखना वो भी नाउन है। अब नाउन भी देखना गाइस दो तरह के होते हैं, और इनके नाम से ही समझ आएगा, कुछ रटने की जरूरत नहीं, इनके नाम में ही इनका मतलब छिपा हुआ है। दो तरह के नाउन्स होते हैं, कौन से, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। ठीक है, नाम में ही मतलब छिपा हुआ है। कॉमन नाउन, कॉमन क्या होता है गाइस, जो आम होती है, सबके लिए कॉमन होता है, राइट, जो विच इज अवेलेबल टू एवरीवन, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है, जो सबके लिए कॉमन है, आम है, और प्रॉपर जो किसी एक का है। तो कॉमन नाउन जो सब यूज कर सकते हैं, कॉमन है, और प्रॉपर जो किसी स्पेसिफिक एक का है। अब ये दो कैटेगरीज होती है बेसिकली नाउन की। तो जब मैंने बोला रोहित इज अ स्मार्ट बॉय, तो इसमें देखना रोहित एक प्रॉपर नाउन है, जबकि बॉय एक कॉमन नाउन है। अब हम कैसे डिसाइड करें कौन प्रॉपर है कौन कॉमन है? देखना गाइस, अब सिंपल डेफिनेशन है, कोई वर्ड अगर उस कैटेगरी में हर, मतलब उस कैटेगरी का जो जो भी उसका पार्टिसिपेंट है, जो भी उस कैटेगरी में आता है, अगर वो हर उस कैटेगरी का जो एंटिटी है वो यूज कर सकती है, तो वो होता है कॉमन नाउन। मतलब वो नाम जो उस कैटेगरी में हर कोई यूज कर सकता है। लेकिन अगर वो एक ऐसा नाउन है जो किसी एक का पर्टिकुलर है, जो हर कोई यूज नहीं कर सकता, वो होता है प्रॉपर नाउन। देखना, जैसे क्या मैं, आप अंडरस्टैंडिंग समझना, क्या मैं हर लड़के को रोहित बोल सकता हूँ? आंसर देखना गाइस, अपने मन से पूछना, क्या मैं हर लड़के को रोहित बोल सकता हूँ? नहीं। लेकिन मैं हर लड़के को बॉय बोल सकता हूँ? यस। तो बॉय क्या हुआ, कॉमन नाउन। रोहित भी बॉय है, राहुल भी बॉय है, रोहन भी बॉय है, ठीक है, सोहन भी बॉय है, ठीक है, सीमा सीमा भी गर्ल है, रीना भी गर्ल है, ठीक है, रानी भी गर्ल है, राइट। तो वो नाम जो सब यूज कर सकते हैं, जैसे बॉय हर लड़का यूज कर सकता है, तो कॉमन नाउन, लेकिन रोहित, राहुल, ये क्या हुए, प्रॉपर नाउन। हाँ जी, क्या मैं हर लड़की को रीना बोल सकता हूँ या सीमा बोल सकता हूँ? नहीं। लेकिन मैं हर लड़की को गर्ल बोल सकता हूँ? यस। तो गर्ल क्या हुआ, कॉमन नाउन, जबकि रीना, सीमा, गीता क्या हुए, प्रॉपर नाउन। क्या मैं हर देश को, देखना गाइस, क्या मैं हर देश को इंडिया बोल सकता हूँ? नहीं सर। लेकिन मैं हर देश को कंट्री बोल सकता हूँ? हाँ सर, यस। तो कंट्री क्या हुआ, कॉमन नाउन, जबकि इंडिया क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। हाँ जी गाइस, क्या मैं हर फल को मैंगो बोल सकता हूँ? हर फल को मैं मैंगो बोल सकता हूँ? नहीं। लेकिन मैं हर फल को फ्रूट बोल सकता हूँ? यस। तो फ्रूट क्या हुआ, कॉमन नाउन, जबकि मैंगो, गवावा, बनाना क्या हुए, प्रॉपर नाउन्स। तो अब समझ आ रही है गाइस? तो प्रॉपर नाउन जो किसी एक का है, किसी एक जगह का, जैसे क्या मैं हर शहर को चंडीगढ़ बोल सकता हूँ? नहीं। लेकिन मैं हर शहर को सिटी बोल सकता हूँ? यस। तो सिटी क्या हुआ, कॉमन नाउन, जो हर शहर के लिए यूज हो सकता है, लेकिन चंडीगढ़ क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। समझ आ रही चीज? तो ये होते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन्स हमारे। चलिए, तो पहली कैटेगरी समझ आई। कोई भी नाम है जो मतलब इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, वो क्या होता है, नाउन। अब अच्छा, स्टोरी पे वापस आते हैं। तो वो लड़का खड़ा होता है, बोलता है भाई जितने भी नाम है वो सब मेरे पास है, तो मेरा नाम चलता है, ठीक है। तो वो गैंग का लीडर बन जाता है एक। चलो जी, गैंग का लीडर, गैंग बनने शुरू हो गए क्लास में। लेकिन कभी ऐसा सुना है इसकी क्लास में एक ही गैंग था? कभी हुआ है किसी क्लास में एक ही गैंग था? नहीं, दूसरा तो आएगा तभी तो कहानी बनेगी, राइट। तो देखना होता क्या है गाइस, अब जब एक तरफ गैंग नाउन बना लेता है, तो होता क्या है, दूसरी तरफ फिर एक और लड़का खड़ा होता है, बोलता है ठीक है भाई तू अपना गैंग बना रहा है, तो एक मैं अपना गैंग भी बनाता हूँ। वो दूसरा लड़का कौन था,
वर्ब्स। ठीक है, वर्ब क्या कहता है देखना गाइस, वर्ब कहता है कि भाई ठीक है तेरा नाम चलता है, सारे नाम तेरे पास है, कोई नहीं तो अपना गैंग बना, इधर मैं अपना गैंग बना रहा हूँ। फिर सब बच्चे उससे पूछते हैं कि भाई तू क्यों गैंग बना रहा है, तेरे पास क्या क्वालिटी है, तेरे पास क्या पावर है जो तू गैंग बना रहा है, तू क्यों लीडर बन रहा है गैंग का। तो वर्ब बोलता है, मैं अपनी क्वालिटी बताता हूँ, वर्ब बोलता है कि अगर नाउन का नाम चलता है तो मेरा काम चलता है, मेरे एक्शन चलते हैं। तो वर्ब बोलता है कि मेरे पास दो तरह के वर्ड्स हैं बेसिकली। पहले तो है उसने जो बोला गिनती गिने चुने, ठीक है, गिनती के 10-12 होते हैं, 10-15 होते हैं, वो कौन से, हेल्पिंग वर्ब्स। तो बोलते हैं कि मेरे पास एक तो हेल्पिंग वर्ब्स हैं सारे, और मेन जो हैं वो है मेरे पास एक्शन वर्ब्स या एक्शन वर्ड्स। ठीक है, अब दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ, सुनना गाइस। पहले तो हेल्पिंग वर्ब समझना। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इनको ना वैसे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब एक ना वैसे ही मतलब नाम है जो रखा गया है, इनका एक्चुअली नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स, सेकेंडरी वर्ब्स। ठीक है, अब ये होती कौन सी है गाइस, देखना गिनती की मेरे ख्याल से 10 ही होते हैं जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। कौन सी, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, हैज, हैव हैड, विल और बी। ठीक है, ये हम मेजरली हम ये यूज कर रहे होते हैं, विल, शैल, अब ये थोड़ी बहुत हो जाती हैं। विल का शैल भी हो जाता है, मे भी हो जाता है, कुड भी हो जाता है, कैन भी हो जाता है, वो मॉडल्स है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हमें समझना है हेल्पिंग वर्ब्स होती क्या हैं। ये गिनती की जो हम ये जो यूज करते हैं सेंटेंस में। अब बच्चे बोलते हैं, मैंने जब बच्चों से पूछता हूँ ना मैं कि बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बच्चे की डेफिनेशन क्या होती है पता है, सर वो सेंटेंस को पूरा करने में हेल्प करते हैं, वो वर्ब की हेल्प करते हैं, वो ऐसा सेंटेंस में हेल्प करती हैं जोड़ने में, वो ऐसा कुछ नहीं करती है। इनका काम होता है सेंटेंस का टेंस डिफाइन करना, सेंटेंस का टेंस बताना कि कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। जैसे रोहन वॉज प्लेइंग, रोहन इज प्लेइंग और रोहन विल बी प्लेइंग। तो देखना गाइस, रोहन और प्लेइंग तीनों सेंटेंसेस में कॉमन है, लेकिन किसने टेंस चेंज किया है सेंटेंस का, वॉज ने बताया पास्ट में, इज ने बताया प्रेजेंट में, और विल बी ने बताया फ्यूचर में। तो ये होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब्स जो क्या बताती हैं, सेंटेंस का टेंस बताती हैं, काल बताती हैं, समय बताती हैं कि किस टाइम से बिलोंग करता है। ये तो गिनती की 8-10 ही होती हैं जो हम डेली यूज करते भी हैं, लेकिन मेन जो होती हैं वर्ब के पास, वो है उसके पास उसके एक्शन वर्ड्स। तो वर्ब क्या बोलता है कि मेरे पास ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब्स तो हैं ही, लेकिन मेरे पास मेन जो है वो कौन सी है, एक्शन वर्ब। मतलब कोई भी वर्ड इस दुनिया में जो आपको कोई एक्शन होता हुआ बताता है, देखना गाइस, कोई भी वर्ड जो आपको कोई एक्शन होता हुआ बताता है, जैसे मैंने बोला रोहित इज प्लेइंग, अब देखना इसको ब्रेक करते हैं, रोहित क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया, राइट, नाउन है, नेम है, इज क्या हो गया हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, राइट, लेकिन प्लेइंग क्या था यहाँ पे, प्लेइंग था एक्शन वर्ब जो एक्शन होता हुआ बता रहा है। तो कोई भी वर्ड इस दुनिया में जो आपको कोई एक्शन होता हुआ बताएगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब्स। ठीक है, जैसे मैंने बोला रीना इज ड्राइविंग, रीना क्या हो गया, नाउन, इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और एक्शन वर्ब क्या हो गया इसमें यहाँ पे, ड्राइविंग। हाँ जी, रोहन वॉज स्विमिंग, रोहन नाउन, वॉज हेल्पिंग वर्ब, लेकिन स्विमिंग क्या हो गया यहाँ पे, एक्शन वर्ब। ही वॉज शी वॉज कुकिंग, ठीक है, कुकिंग में शी क्या हो गया, मतलब चलो रीना वॉज कुकिंग, तो रीना क्या हो गया, नाउन, इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और कुकिंग क्या हुआ हमारा, एक्शन वर्ब। ठीक है, ही वॉज वर्किंग, ठीक है, तो ही वॉज वर्किंग या ही वॉज शाउटिंग, तो ही या रोहन वॉज शाउटिंग, रोहन क्या हो गया हमारा, नाउन, वॉज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन शाउटिंग क्या है हमारा, एक्शन वर्ब। तो समझना कोई भी वर्ड जो आपको कोई एक्शन होता हुआ बताता है सेंटेंस में, वो क्या होता है आपका एक्शन वर्ब। तो वर्ब क्या बोलता है कि भाई इधर गैंग मैं बना रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास क्या है, एक तो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो सेंटेंस में टेंस बताते हैं, और मेन जो है मेरे पास वो है सबसे ज्यादा, वो है मेरे एक्शन वर्ब जो कोई एक्शन होता हुआ बताते हैं। तो अब खिंचातानी शुरू हो जाती है, अब गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है क्लास में। क्या क्या गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है, देखना गाइस, नाउन बोलता है मेरा नाम चलता है, क्यों, क्योंकि सारे नेम्स, नाउन्स, सब नेमिंग वर्ड्स मेरे पास हैं। और दूसरी तरफ वर्ब बोलता है अच्छा तेरा नाम चलता है तो मेरा काम चलता है, काम तो मैंने कर रहे हैं, तेरा नाम नाम से क्या होगा, काम तो मुझसे होगा। तो वर्ब बोलता है कि मेरे से काम चलता है, मतलब सारे एक्शन वर्ड्स मेरे पास हैं। अब ये दो गैंग के लीडर बन जाते हैं गाइस। अब होती है कहानी शुरू, देखना अब आएगा मजा, क्योंकि अब गर्मा गर्मी माहौल अब गर्म हो चुका है, देखना। लेकिन गाइस अब दो गैंग बनने के बाद ऐसा तो नहीं होता कि गैंग में एक ही मेंबर है, गैंग बड़ा भी तो करना पड़ेगा तभी तो गैंग बनेगा। तभी तो अब देखना क्या होता है गाइस, जब गैंग बड़ा करने की बारी आती है तो देखना होता क्या है, किस्मत से पता चलता है कि नाउन का छोटा भाई, नाउन का एक छोटा भाई भी था जो उसी क्लास में पढ़ता था। अब नाउन का छोटा भाई उसी क्लास में पढ़ता था तो वो किसके गैंग में जाएगा, ऑब्वियसली बात है अपने भाई के गैंग में जाएगा, बड़े भाई के साथ रहेगा। तो नाउन का छोटा भाई भी इसी क्लास में पढ़ता था और वो उसका गैंग ज्वाइन कर लेता है, कौन था वो,
प्रोनाउंस। अब याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, देखना गाइस। नाउन से नाउन याद रह जाएगा, नाउन्स और नाउन्स, ऊपर भी नाउन्स है, प्रोनाउंस में भी नाउन्स है, राइट। और प्रो को अलग कर दो, प्रोनाउंस मतलब। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, ब्रदर को हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं गाइस, ब्रो बोल देते हैं, ब्रो। तो ब्रो ऑफ नाउन, प्रो ऑफ नाउन, याद रखने की ट्रिक दे रहा हूँ बस। ब्रो ऑफ नाउन, प्रो ऑफ नाउन, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन का ब्रदर, ब्रो ऑफ नाउन या प्रो ऑफ नाउन, प्रोनाउन। अब छोटा भाई का काम क्या होता है गाइस, नाम तो चलो याद हो जाएगा कि नाउन का छोटा भाई प्रोनाउन, ठीक है सर याद होगा। लेकिन छोटे भाई का काम क्या होता है वो तो बताओ, अब समझना गाइस। जब भी घर में देखा आपने, बड़ा भाई और छोटा भाई जब भी इकट्ठे होते हैं क्या करते हैं, मम्मी पापा नहीं है, बड़ा भाई क्या बोलेगा, छोटे सुन मैं थोड़ा घूम के आ रहा हूँ, पीछे से संभाल लियो, कोई दिक्कत आए तो फोन कर दियो मेरे को, है ना। या जब भी मतलब बड़ा भाई छोटा भाई इकट्ठे होते हैं, छोटे भाई को ओए पानी लाइयो, ओए पॉपकॉर्न लाइयो, ओए ये लेके आइयो। तो बड़ा भाई हमेशा क्या करता है, छोटे भाई को काम पे लगा के रखता है, राइट। सेम काम यहाँ पे है। जब भी किसी सेंटेंस में से देखना गाइस, नाउन को जाना होता है, वो अपनी जगह पे किसको रिप्लेस करा जाता है, अपनी जगह पे किसको लगा जाता है, प्रोनाउन को। अपने काम के बदले किसको लगा देता है, प्रोनाउन को। जैसे अब नाउन अपनी जगह पे प्रोनाउन को कैसे लगाता है, देखना गाइस। मैंने बोला था ना रोहित इज प्लेइंग, देखना इसमें रोहित इज प्लेइंग में सिंपल से शुरू करते हैं। रोहित इज प्लेइंग, रोहित क्या है हमारा नाउन, इज क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग क्या है हमारा एक्शन वर्ब, राइट। तीनों वर्ड क्लियर हो रहे हैं। अब मुझे रोहित को मान लो सेंटेंस में से जाना है, क्या मैं रोहित की जगह ही लगा सकता हूँ, रोहित की जगह ही इज प्लेइंग, राइट, लगा सकते हैं। तो ही क्या हुआ, एक प्रोनाउन। हाँ जी, रीना इज डांसिंग में रीना की जगह हम क्या लगा सकते हैं, शी लगा सकते हैं। तो शी क्या हुआ, एक प्रोनाउन जो नाम की जगह पे आता है। तो जो वर्ड नाम को रिप्लेस करके उसकी जगह पे यूज होते हैं सेंटेंस में, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस। जैसे हमारे लिए हम क्या लगाते हैं, वी, उनके लिए, ठीक है, दे, ठीक है, सामने वाले के लिए हम क्या बोलते हैं, यू, ठीक है, किसी नॉन लिविंग चीज के हम क्या बोलते हैं, इट। अपने खुद के नाम के लिए हम क्या लगाते हैं, आई। तो आई, ही, शी, यू, वी, दे, इट, ये सब क्या होते हैं गाइस, एग्जांपल्स ऑफ प्रोनाउंस। क्या सर इतने ही होते हैं, नहीं और भी होते हैं। आई का मी भी बनता है, माई भी बनता है, माइन भी बनता है, माई सेल्फ भी बनता है, ऐसे इन सबके बनते हैं। और बहुत और भी हैं बहुत प्रोनाउंस जो हम डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर करेंगे। बट बेसिकली आपको अब कॉन्सेप्ट समझना है कि प्रोनाउन होता क्या है इनहेरेंटली, कि कोई वर्ड जो किसी नाम को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। तो जो वर्ड नाउन को अपने बड़े भाई को रिप्लेस करके उनकी जगह पे यूज हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नाउन का छोटा भाई, प्रोनाउन, मतलब वो होते हैं प्रोनाउंस। तो वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। चलो जी, उसका गैंग बड़ा हो गया, वो खुश, भाई उसके भी हिम्मत बढ़ गई, अब तो दो भाई इकट्ठे हो गए। लेकिन ये देख के वर्ब वर्ब को टेंशन होना लाजमी है। टेंशन किस बात की, कहते यार उसका तो भाई था, उसको तो भाई मिल गया, मैं कैसे गैंग बड़ा करूं, मेरे पास तो कोई भाई भाई नहीं है। लेकिन वर्ब ना स्मार्ट बंदा होता है, वर्ब बोलता है यार कोई दिक्कत नहीं है, भाई भाई नहीं है तो क्या हो गया, दुनिया के भाई नहीं होते, ऐसा थोड़ी है वो गैंग नहीं बनाएंगे। तो वर्ब बड़ा स्मार्ट होता है। वर्ब क्या बोलता है, ठीक है उसको उसका भाई मिल गया तो मैं एक दोस्त ढूंढ लाता हूँ। तो वर्ब क्या करता है, वो क्लास में जाता है और सबको बोलता है यार तुम मेरे फ्रेंड बन जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे गैंग में आ जाओ। तो एक उसका फ्रेंड था जो उसकी बात मान लेता है। अब वो कौन था, देखना गाइस। अब वर्ब का फ्रेंड कौन था, एड वर्ब। देखना याद रखने की ट्रिक समझा रहा हूँ, वर्ब से वर्ब याद रह जाएगा, वर्ब्स वर्ब्स, और ऐड को अलग कर दो इससे, ऐड वर्ब्स। तो ऐड वर्ब का क्या काम था, देखना गाइस, अपने नाम में ही उसका सारा मतलब छिपा हुआ है। ऐड वर्ब, ऐड करना, एडिशन करना, किसमें, वर्ब में। तो वर्ब का काम क्या था, सॉरी एडवर्ब का काम क्या था, टू ऐड इनटू वर्ब्स, के वर्ब में कुछ ऐड करना। लेकिन सवाल ये उठता है क्या ऐड करना, तो एडवर्ब का काम क्या होता है गाइस, वर्ब में क्वालिटी ऐड करना, टू ऐड क्वालिटी इनटू वर्ब्स। तो एडवर्ब का बेसिकली काम क्या होता है, वर्ब्स में क्वालिटी ऐड करना। अब सवाल ये उठता है सर क्वालिटी, क्वालिटी कैसे ऐड होती है, तो बड़ी अजीब सी बात की आपने। अब एग्जांपल से समझना गाइस, मैं एग्जांपल में समझाता हूँ। मैंने बोला कि एडवर्ब क्या होते हैं, ठीक है वो वर्ब जो वर्ब में क्वालिटी ऐड करते हैं। जैसे मैंने बोला रोहित इज ड्राइविंग, एग्जांपल देखना गाइस। मैंने बोला रोहित इज ड्राइविंग, इसमें रोहित क्या था गाइस, नाउन, प्रॉपर नाउन, इज क्या था, हेल्पिंग वर्ब, और ड्राइविंग क्या था, एक्शन वर्ब, राइट। लेकिन अब अगर इस सेंटेंस में मैं ये जोड़ देता हूं, रोहित इज ड्राइविंग केयरलेसली, ठीक है, या रोहित इज ड्राइविंग रैशली, ठीक है, तो केयरलेसली या रैशली ये क्या हुए, किसमें क्वालिटी ऐड की इन्होंने, देखो रोहित इज ड्राइविंग तक था, आपको ये देखना क्वालिटी किस में ऐड की है, क्या हमने रोहित को केयरलेसली बोला है या उसकी ड्राइविंग को केयरलेसली बोला है, कि वो ड्राइविंग केयरलेसली कर रहा है। ही माइट नॉट बी ए केयरलेस बॉय, बट वो ड्राइविंग केयरलेसली कर रहा है। तो केयरलेसली हमने किसको बोला है, ड्राइविंग को। ड्राइविंग क्या है हमारा यहाँ पे, एक्शन वर्ब। तो केयरलेसली या रैशली क्या हो गया हमारा यहाँ पे, एड वर्ब।
समझ आ रही है चीज? तो कोई भी वर्ड जो एक्शन वर्ब में क्वालिटी ऐड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। ठीक है। और एग्जांपल देखना गाइस, मैंने बोलता हूँ रीना इज सिटिंग, रीना इज सिटिंग क्वाइटली। क्वाइटली किसको बोला हमने? रीना को या सिटिंग को? कि वो चुपचाप बैठी है। चुपचाप क्या है? उसका बैठना है। तो सिटिंग को बोला है, सिटिंग क्या है? वर्ब। क्वाइटली क्या हो गया? एड वर्ब। ठीक है। रोहन वॉज शाउटिंग लाउडली। लाउडली किसको बोला हमने यहाँ पे? शाउटिंग को। शाउटिंग क्या है? वर्ब। तो लाउडली क्या हो गया? एड वर्ब। ठीक है। शी वॉज डांसिंग ब्यूटिफुली। ब्यूटिफुली हमने किसको बोला है? शी को या उसकी डांसिंग को? डांसिंग को। तो ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली हमने किसको बोला? उसकी डांसिंग को। डांसिंग क्या है? एक्शन वर्ब। तो ब्यूटीफुली क्या हो गया? एड वर्ब, जो एक एक्शन वर्ब में क्वालिटी ऐड करता है। तो अब समझ रहे हो गाइस एडवर्ब क्या होते हैं? वो वर्ड जो किसी सेंटेंस में एक्शन वर्ब में क्वालिटी ऐड करते हैं। ठीक है। जैसे ही वॉज लिसनिंग टू मी पेशेंटली। तो पेशेंटली क्या हो गया? एडवर्ब। जैसे मैं बोलता हूँ ही विजिट्स हिज पेरेंट्स रेगुलरली। तो ही विजिट्स हिज पेरेंट्स रेगुलरली। रेगुलरली क्या हो गया यहाँ पे? एडवर्ब। रेगुलरली क्या है? बार बार। तो कोई भी वर्ड जो किसी एक्शन वर्ब की क्वालिटी बढ़ाता है उसे हम क्या बोलते हैं गाइस? एड वर्ब। क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। चलो, तो वर्ब को भी अपना फ्रेंड मिल गया एक, उसका भी गैंग बड़ा हो गया, वो भी बराबर हो गया, वो भी खुश। लेकिन अब देखना होता क्या है, ये देख के कि वर्ब को एक फ्रेंड मिल गया, नाउन जेलस हो जाता है, नाउन को मिर्ची लग जाती है। नाउन प्रोनाउन को बोलता है यार छोटे सुन इधर आ। बोला हाँ भाई क्या हुआ? कहता है यार वो वर्ब तो बहुत शाना निकला, अपने से आगे निकल गया। बोला नहीं भाई आगे कहाँ निकला, वो भी दो हैं हम भी दो हैं, देख लेंगे उसको। कहता नहीं नहीं दो दो वाली बात नहीं है, उसका यूजेज देख, वो हमसे सेंटेंस में आगे निकल गया। बोला बताओ कैसे भाई? बोला देख यार तू और मैं तो सगे भाई हैं। देख सेंटेंस में या तो मैं होता हूँ या मैं हट जाता हूँ तो मेरी जगह पे तू आता है, राइट? लेकिन हम दोनों में से कोई एक होता है, या तो रोहित इज रनिंग होता है या रोहित हट जाता है तो रोहित की जगह पे ही इज रनिंग होता है, या तो रीना इज डांसिंग होता है या रीना हट जाता है तो शी इज डांसिंग होता है। तो या तो नाउन होता है या नाउन की जगह पे प्रोनाउन आता है, राइट? बोला हाँ भाई बात तो ठीक है। लेकिन कहता है उधर देख वो तो दोनों इकट्ठे आने लग गए एक ही सेंटेंस में। बोला कैसे भाई? बोला देख रोहित इज ड्राइविंग केयरलेसली। रोहित तो अकेला नाउन है यहाँ पे, लेकिन ड्राइविंग एक्शन वर्ब भी आ गया और केयरलेसली उसका फ्रेंड भी आ गया साथ में, एक ही इकट्ठा आ गए दोनों एक ही सेंटेंस में। बोला हाँ भाई बात तो ठीक है। कहते थे समझ देख हम दोनों में से तो कोई एक आता है, लेकिन वो दोनों इकट्ठे आने लग गए। बोला अब उसको समझ आई प्रोनाउन का? तो बोला हाँ भाई बात तो ठीक बोल रहे हो आप। तो बोला यही तो मैं कह रहा था, वो अपने से आगे निकल गया, कुछ दिमाग लगा, हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वो बहुत दिमाग लगाते हैं, ये करें वो करें, लेकिन उनको कुछ नहीं समझ आता, कुछ नहीं सोचता क्या करें। तो एट द एंड वो क्या करते हैं? वर्ब की चीटिंग कर लेते हैं। बोला छोटे मेरे पास एक आइडिया है। बोला क्या भाई? कहता क्यों नहीं, जैसे वो एक दोस्त ढूंढ के लाए हम भी वैसे ही दोस्त ढूंढ लाए, वो भी हमारी हेल्प करे ऐसे ही। बोला हाँ भाई आइडिया तो ठीक है। तो नाउन का भी एक ना फ्रेंड होता है, वो उसको बुला लेता है। बोला सुन सुन यार मेरे गैंग में आ जा, मेरी ऐसी हेल्प कर दिया अगर जैसे एडवर्ब उसकी हेल्प करता है ना, तू भी मेरी ऐसी हेल्प कर दे, तो बिल्कुल भाई की तरह रखेंगे हम तेरे को। और वो उसका फ्रेंड भी मान जाता है। तो देखना अब नाउन का फ्रेंड कौन था जो उसने एडवर्ब की चीटिंग करके बुलाया था? नाउन का फ्रेंड था एडजेक्टिव। ठीक है। एडजेक्टिव, वही ऐड से याद रखना गाइस, इसको भी ऐड से ऐड याद रह जाएगा। एडवर्ब में जैसे ऐड था, क्या काम करना था उसका? ऐड करना। सेम वही काम क्या होता है? एडजेक्टिव का होता है। तो उसने बिल्कुल चीटिंग करके बुलाया, तो एडजेक्टिव का भी काम क्या होता है? ऐड करना। क्या ऐड करना? बिल्कुल सेम वही जो एडवर्ब कर रहा है, क्वालिटी ऐड करना। लेकिन हाँ किसमें? जैसे एडवर्ब वर्ब में कर रहा था, अब एडजेक्टिव का काम होता है किसमें क्वालिटी ऐड करना? अपने बड़े लीडर के उसमें, किसमें? नाउन या प्रोनाउन में। तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है? जैसे एडवर्ब ऐड कर रहा था क्वालिटी वर्ब में, एडजेक्टिव ऐड करता है क्वालिटी किसमें? नाउन या प्रोनाउन में। अब सवाल ये उठता है सर नाउन या प्रोनाउन में कैसे क्वालिटी ऐड हो सकती है, कुछ समझाओ, तो समझ नहीं आया, एक्सप्लेन करता हूँ। देखना कोई वर्ड जो किसी नाउन में क्वालिटी, किसी नेम में क्वालिटी ऐड करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला, देखना गाइस, रोहन इज अ स्मार्ट बॉय। ठीक है। अब मैंने बोला रोहन इज अ स्मार्ट बॉय। अब स्मार्ट हमने किसको बोला है यहाँ पे? बॉय को। अब बॉय रोहन ही है, रोहन की बात हो रही है, तो स्मार्ट हमने किसको बोला बेसिकली यहाँ पे? रोहन को। रोहन क्या है? नाउन। अब टेक्निकली समझना हमें कि किसकी क्वालिटी बढ़ाई है। रोहन लड़का है ऐसे नहीं, रोहन क्या है? एक नाउन है, एक नेमिंग वर्ड है, राइट? तो रोहन की क्वालिटी बढ़ाई है। रोहन क्या है? नाउन। और नाउन की क्वालिटी बढ़ा रहे तो स्मार्ट यहाँ पे क्या हुआ? एडजेक्टिव। ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ चलो प्रोनाउन में कैसे क्वालिटी ऐड करते हैं वो भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ शी इज़ अ गर्ल, फिर मैंने बोला शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल।
अब ब्यूटीफुल हमने किसको बोला? शी को, प्रोनाउन को। प्रोनाउन नाउन की जगह पे लगा था किसी की जगह पे, लेकिन है तो नाउन का ही छोटा भाई। तो यहाँ पे हमने शी इज अ गर्ल, फिर मैंने बोला शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल किसको बोला हमने? शी को, प्रोनाउन को, राइट, प्रोनाउन, राइट। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव। मैंने बोला इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। किसको बोला ग्रेट हमने? इंडिया को। इंडिया, इंडिया क्या है? नाउन। तो ग्रेट क्या हुआ? एडजेक्टिव। चंडीगढ़ इज अ सिटी, चंडीगढ़ इज अ स्मार्ट सिटी। स्मार्ट किसको बोला हमने यहाँ? चंडीगढ़ को, ठीक है, या एडवांस सिटी, या चंडीगढ़ इज अ डेवलप्ड सिटी। तो डेवलप्ड क्या हो गया यहाँ पे? क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो कोई भी वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन में क्वालिटी ऐड करेंगे वो क्या होते हैं? हमारे एडजेक्टिव। क्लियर हो रहा है गाइस? वेरी गुड। उसको भी सही फ्रेंड मिल गया, नाउन को भी। अब लग रहा है वो बराबर बराबर हो गए। यस, राइट। अब मजा आ रहा है कहानी में? मजा आ रहा है तो गाइज लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। चलो जी, उसको भी गैंग बड़ा हो गया, वो भी खुश। लेकिन अब आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब कहानी में ट्विस्ट नहीं आएगा तो कहानी क्या होगी गाइस? सुनना तभी तो मजा है। तो अब आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या आता है देखना। सीक्रेट, अब देखो पूरे गैंग वैंग बन रहे होते हैं क्लास में, नाउन के अपने गैंग बन गया, वर्ब के अपना गैंग बन गया, वो उसकी हेल्प कर रहा है, वो उसका छोटा भाई है, ये सब चल रहा है। लेकिन सीक्रेटली पता चलता है, क्या पता चलता है? कि एडजेक्टिव, ठीक है, याद रखना, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब बचपन के दोस्त थे एक दूसरे के, बेस्ट फ्रेंड्स थे ये, मतलब चड्डी बड्डी जिसको हम बोलते हैं, लंगोटिया यार टाइप। तो ये बचपन के फ्रेंड्स थे एक दूसरे के, एडजेक्टिव और एडवर्ब। आज ये अलग अलग गैंग में चले गए, इनको पता नहीं था। लेकिन जब इन्होंने आपस में देखा, जब इनकी नज़रें मिली, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड उस गैंग में बैठा है, वो देखता है मेरा बेस्ट फ्रेंड उस गैंग में बैठा है, तो सबके सामने तो कुछ नहीं बोलते वो, लेकिन शाम को जब वो पार्क में मिलते हैं तब जिक्र होता है, तब एडजेक्टिव और एडवर्ब भाग के मिलते हैं। बोला यार ये क्या हो गया आज क्लास में? बोला तू उस गैंग में क्यों चला गया? बोला तू उस गैंग में क्या कर रहा था? बोला यार मेरे को उसने बुलाया हेल्प करने के लिए, मैं हेल्प करने के लिए चला गया। कहता मेरे साथ भी यही हुआ, उसने मेरे को बोला मेरी हेल्प करने के लिए आ जा, मैं भी दिल बड़ा करके उसके पास चला गया। तो बोला यार ये तो बड़ी मुसीबत होगी कि अब हम बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स आपस मतलब एक दूसरे के साथ बचपन से खेले हैं, अब आज अलग अलग गैंग में कैसे बैठे? तो बोला यार फिर क्या करें बता? कहता गैंग छोड़ दे। बोला ना यार बड़ी बेइज्जती होगी, सब बोलेंगे अरे आए थे बड़े गैंग ज्वाइन करने वाले, एक दिन में भाग गए। तो बोला क्या करें फिर? लड़ाई करें आपस में? बोला पागल है क्या, बचपन के दोस्त लड़ाएंगे थोड़ी। तो बोला भाई ना गैंग छोड़ना, अलग अलग गैंग में बैठना है, ना लड़ाई कर रहे तो कैसे चलेगा काम? तो बोला यार एक तरीका और है। बोला क्या? कहता ऐसा करते हैं, सबको ये दिखाते हैं कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है, किसी को पता तो है नहीं क्लास में कि हम बचपन के फ्रेंड्स हैं, तो ऐसा दिखाते हैं सबको कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, अलग अलग गैंग में बैठते हैं, इनकी बातें सुनते हैं, वर्ब की और नाउन की, और जो हम क्या करेंगे आपस में लड़ेंगे नहीं, चुपके चुपके अंडर द टेबल एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे। बोला ये कैसे होगा? बोला देख तू देखता जा बस। तो ये डिसाइड करते हैं कि हम बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम अलग अलग गैंग में बैठेंगे, ठीक है, लेकिन किसी को बिना बताए एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे अंडर द टेबल चुपके चुपके। बोला ये कैसे होगी हेल्प एक दूसरे की? अब वो ध्यान से देखना गाइस, एडजेक्टिव एडवर्ब एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं? देखना, वही वर्ड जो किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव होता है ना, वही वर्ड अपने पीछे एल वाई लगा के दूसरे सेंटेंस में जाके क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। मतलब वो आपस में वर्ड शेयर करते हैं। देखना एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे स्मार्ट था यहाँ पे, रोहित इज अ स्मार्ट बॉय, स्मार्ट एडजेक्टिव था। अगर मैं स्मार्ट के पीछे एल वाई लगा दूं स्मार्टली, तो स्मार्टली क्या बन जाएगा? एडवर्ब। जैसे रोहन इज अ स्मार्ट बॉय एंड रोहन इज वर्किंग, अगर मैं वर्किंग की एक्शन वर्ब की क्वालिटी बढ़ा रहा हूं तो क्या बन जाएगा? रोहन इज वर्किंग स्मार्टली। हाँ जी, मैंने बोला रीना इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल क्या था यहाँ पे? एडजेक्टिव। अब ब्यूटीफुल में एल वाई जोड़ दूं क्या बन जाएगा? रोहन रीना इज डांसिंग ब्यूटीफुल्ली। तो केयरलेस, केयरलेसली किससे बना है? केयरलेस से। तो रोहन इज ए केयरलेस ड्राइवर, अगर मैं एडजेक्टिव की तरह यूज करूं तो क्या यूज होगा? केयरलेस। कि रोहित इज अ केयरलेस ड्राइवर। लेकिन अगर एडवर्ब की तरह यूज करूं तो क्या बन जाएगा? रोहन इज ड्राइविंग केयरलेसली। रैशली किससे बना है? रैश से, कि ही इज अ रैश ड्राइवर एंड ही इज ड्राइविंग रैशली। रोहन इज अ लाउड पर्सन, ही इज शाउटिंग लाउडली। शी इज अ रूड लेडी, शी वॉज टॉकिंग रूडली। तो रूड रूडली, क्विक क्विकली, स्लो स्लोली, ठीक है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली, स्मार्ट स्मार्टली, क्विक क्विकली। ठीक है, अब सोचो कितने, अब समझ आ रहा है ये एलवाई वाला? हाँ सर ये हमें पता तो था, बस आपने आज रिकिंडल कर दिया इसको। तो अब इसको याद रखो टेक्निकली, ठीक है, ये नहीं कि रटा हुआ है। स्मार्टली अब कंट्रोल करो उसको। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंटली,
तो रोहन इज एन इंटेलिजेंटली पर्सन या रोहन इज एन इंटेलिजेंट पर्सन? रोहन इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, क्योंकि इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। और एडवर्ब बनाना है तो रोहन इज वर्किंग इंटेलिजेंटली या रोहन इज वर्किंग स्मार्टली। ठीक है, शी इज अ केयरफुल पर्सन एंड शी वाज नो शी वाज वॉकिंग केयरफुली या शी वाज बिहेविंग केयरफुली। तो ऐसे होते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब्स का। इसके वही वर्ड जो किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव होता है, इसके एक सिंपल सी आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, वही वर्ड जो किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव होता है, अपने पीछे एल वाई लगा के वो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। अब समझना 99.9% जो एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं वो सेम होते हैं। 99.9%। सोचो, जो वही वर्ड एडजेक्टिव होता है और वही वर्ड अपने पीछे एल वाई लगा के क्या बन जाता है? एडवर्ब। नाइस नाइसली, रूड रूडली, स्मूथ स्मूथली, शॉर्ट शॉर्टली, क्विक क्विकली, रैंडम रैंडमली, ओकेजनल ओकेजनली। राइट, सोचो कितने वर्ड्स हमने देखे होंगे आज तक, लेकिन अब दोनों का ही एक ही कॉन्सेप्ट मिल गया कि बचपन के फ्रेंड्स हैं। वो एडजेक्टिव है जब वो नाउन की क्वालिटी बढ़ाएगा, और वही वर्ड शेयर कर देगा एडवर्ब के साथ कि एल वाई लगा ले और इसको एडवर्ब की तरह बना ले। अब समझ आ रहा है क्या बोल रहा था मैं? कि ये बैठते अलग अलग गैंग में है, लेकिन अंडर द टेबल ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कैसे? वर्ड शेयर करके, कि वही वर्ड एडजेक्टिव होता है और वही वर्ड एल वाई लगा के दूसरे सेंटेंस में क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। समझ आएगा इस? फेयर एंड सिंपल, मजा आ रहा है? चलिए जी, तो ये हो गया अपना एडजेक्टिव और एडवर्ब का ट्विस्ट। ठीक है, चलो जी, गैंग बन गए थे, ट्विस्ट आ गया, लेकिन अब आगे क्या होगा ये देखना है ना। एंड गेम क्या है, वहां चलने की मजा वेट हो रही है। तो टोटल कितने बच्चे थे इस क्लास में? मतलब इस क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं 8 स्टूडेंट्स थे। 1 2 3 4 5, ये तो 5 ही हुए, 3 कहाँ गए? अब देखना गाइस, 3, अब बाकी सब तो गैंग वैंग में बढ़ जाते हैं, लेकिन ये 3 शरीफ बच्चे होते हैं, ये बोलते हैं कि हमें किसी गैंग में नहीं जाना, हमें इंडिपेंडेंट रहना है, हमें गैंगबाजी के लफड़े में नहीं पड़ना, हमें अब पढ़ाई करने आए हैं स्कूल में, हम ये लड़ने थोड़ी आए हैं। अब 3 शरीफ बच्चे थे, वो बोले हम न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी गैंग में नहीं जाएंगे। अब ये 3 शरीफ बच्चे कौन थे वो देखना गाइस। सबसे पहला शरीफ बच्चा प्रेपोजिशन। ठीक है, इसको नाम से याद रखना गाइस, सभी के नाम में मतलब छिपा हुआ है और नाम से याद रखूंगा। प्री पोजिशन, तो अपने नाम से ही बताएगा सब कुछ। प्री पोजिशन, वो वर्ड जो आपको किसी की पोजीशन बताते हैं। प्री की यूज हो रहा है उससे पहले आके, और उससे रिलेटेड उसकी पोजीशन बताते हैं। देखना गाइस, प्रेपोजिशन क्या होते हैं? जो किसी की फिजिकल या नॉन फिजिकल, दोनों हो सकती हैं, ठीक है, फिजिकल या नॉन फिजिकल पोजीशन बताते हैं। जैसे देखना गाइस, मैंने बोला आई एम एट होम, 4 वर्ड है, आई एम एट होम। किस वर्ड ने बताया कि मेरी पोजीशन घर पे है, मेरी लोकेशन घर पे है? एट ने। एट क्या हुआ? प्रेपोजिशन। शी इज इन द किचन, किसने बताया किचन के अंदर है वो? इन, क्या हुआ? इन, प्रेपोजिशन। ही इज द बैग इज अंडर द टेबल, किसने बताया टेबल के नीचे है? अंडर, क्या हुआ? अंडर, एक प्रेपोजिशन। द बुक्स आर ऑन द टेबल, किसने बताया टेबल के ऊपर है? ऑन, ऑन क्या हुआ? एक प्रेपोजिशन। आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो किसने बताया मैं दिल्ली को जा रहा हूँ? टू। आई एम कमिंग फ्रॉम कॉलेज, मैं कहाँ से आया हूँ? कॉलेज से आया हूँ, किसने बताया? फ्रॉम। तो ये जो वर्ड्स होते हैं गाइस, इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, बाय, विद, टू, असाइड, बिसाइड, अंडर, थ्रू, बीनीथ, अंडरनीथ, अक्रॉस, ये सब क्या हैं आपके? प्रेपोजिशंस, जो आपको सेंटेंस में क्या बताते हैं? किसी की पोजीशन बताते हैं। ठीक है, अब चाहे वो फिजिकल पोजीशन हो, चाहे वो नॉन फिजिकल। नॉन फिजिकल का मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला आई एम लुकिंग एट यू, मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूं, कोई फिजिकल पोजीशन नहीं है, बट एट उसने मतलब विद रिस्पेक्ट टू यू मैंने पोजीशन बता दी, मैं किसकी तरफ देख रहा हूं? तुम्हारी तरफ। टेक 5 स्टेप्स टूवर्ड्स द वॉल, ये टूवर्ड्स मतलब दीवार की तरफ, ये तो हो गया फिजिकल। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, अब आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ का मतलब क्या हुआ? मैं चंडीगढ़ से हूं। अब ये मेरी फिजिकल लोकेशन नहीं है, ये क्या बता रहा है? कि आई बिलोंग टू चंडीगढ़। तो ये नॉन फिजिकल लोकेशन भी बताते हैं। तो कोई भी पोजीशन बताना, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? प्री पोजिशंस। ठीक है, ये बहुत सारी होती हैं, ये बहुत अभी पढ़ेंगे हम लेक्चर में, तब सिखाऊंगा आपको एक एक का क्या क्या यूज होता है। बट आपको आज आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूँ कि सेंटेंस में हर वर्ड आप आइडेंटिफाई कर पाओ। तो पहला शरीफ बच्चा पहला न्यूट्रल बच्चा कौन था? प्रेपोजिशन। दूसरा कंजंक्शंस, या नाम से याद रखना, कनकरेंट जंक्शन। ठीक है, ये दोनों किस वर्ड से जुड़ के बनते हैं पता है? कनकरेंट जंक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। तो जंक्शन क्या होता है गाइस? कनेक्टिंग पॉइंट, कनेक्टिंग वर्ड। तो कंजंक्शंस क्या होते हैं? इनको कनेक्टर्स भी बोलते हैं सिंपल टर्म्स में, कनेक्टर्स या कंजंक्शंस। ठीक है, कनेक्टर्स मतलब वो वर्ड्स जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। जैसे एंड, एंड क्या काम करता है? जोड़ने का। बट, बिकॉज, सो, देयरफॉर,
हैंस, इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, अलोंग विद, टुगेदर विद, पता नहीं कितने सारे हैं guys। ठीक है, रट नहीं सकते लेकिन समझ सकते हो। कोई जोड़ने वाला काम जो वर्ड करेगा, जो वर्ड जो दोनों पार्ट्स को जोड़ेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। ठीक है, कनेक्टिंग वर्ड्स। ठीक है, जैसे देयर फॉर, हाउएवर, ठीक है, लुक, कॉन्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली, नॉनदलेस, नेवरदलेस, ये सारे क्या हैं आपके? बट, बिकॉज, आइदर, और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे क्या हैं आपके? कंजंक्शंस। ऑल दो, वाइल, येट, ये सब कंजंक्शंस है, कनेक्टर्स हैं जो दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, आप अगर किसी बुक में जाओगे ना, तो ये जो 8वीं कैटेगरी होती है ना, ये आपको बताई गई होती है। मैं आपको पहले वार्न कर देता हूँ। अगर किसी बुक में जाओगे तो इनको 8वीं जो 8 कैटेगरी होती है, वो आपको एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स दिए होते हैं। ठीक है, इंपेरेटिव वर्ड्स। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जिसको हम बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, एक्सक्लेमेशंस। ठीक है, अब ये हम नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि आपको समझाता हूँ। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कौन से होते हैं गाइस? वो वर्ड्स जो आपके इमोशन को शो करते हैं। जैसे ये वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने बोला वाओ, जैसे आपने बोला कि यार मैंने वो वाली गाड़ी खरीद ली, पता है, मैं जवाब देता हूँ आपको वाओ। वाओ क्या है गाइस? मेरा इमोशन शो कर रहा है। ठीक है, या जैसे आपने बोला यार उसके दादाजी एक्सपायर हो गए यार, अलास, अरे यार ये तो बड़ी दुख की बात है। ठीक है यार, वो उसने वो एग्जाम क्लियर कर लिया उसने, अरे शाबाश, ब्रावो। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जिनके पीछे आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलता है, ये इसको बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये वर्ड्स होते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। अब ये आपकी फॉर्मल इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में यूज नहीं होते, ये कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। तो इसलिए ये आपके एग्जाम का हिस्सा भी नहीं होते, तो इसलिए हम इनको नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। तो बुक्स में आपको 8 कैटेगरी ये दी होती है, लेकिन मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। 8 कैटेगरी जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, वो है हमारे आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स गिनती मतलब इस क्लास का सबसे छोटा लेकिन सबसे किफायती बच्चा है। सबसे छोटा क्यों? गिनती के सिर्फ तीन वर्ड्स हैं। ठीक है, और सबसे किफायती क्यों? इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा यूज होने वाले वर्ड्स हैं, सबसे ज्यादा रूल्स इनके हैं। कौन से होते हैं गाइस आर्टिकल्स हमारे? ए, एन और द सबसे ज्यादा यूज होते हैं आपकी लैंग्वेज में। एक सेंटेंस में दो दो तीन तीन बार यूज होते देखे होंगे आपने। और सबसे ज्यादा, सबसे वर्सटाइल यूज भी इन्हीं का ही है। और सबसे ज्यादा गलतियां भी बच्चे शायद इन्हीं में ही करते हैं, ए, एन और द। ठीक है, अब एन, चलो मैं सिंपल एग्जांपल्स आपसे पूछता हूँ। आप सब बोल रहे हो एन कहाँ यूज होता है गाइस? अगर मैं आपसे पूछूं एन कहाँ यूज होता है, आप सभी का आंसर क्या आएगा मन से? सर वॉवल्स, वॉवल्स के सामने, राइट? गलत। अब ये है गाइस जो आपको रटाई गई हैं चीजें बचपन से। एन का वॉवल से कोई लेना देना नहीं होता, दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। एन यूज होता है वॉवल साउंड्स के सामने, और वॉवल साउंड्स भी इंग्लिश वाली नहीं होती, वॉवल साउंड्स भी हिंदी वाली होती हैं। पहले 5 जो हमने वर्ण सीखे थे, अ, ई, आई, ओ, और जो इसको आप इंग्लिश में यू बोलते हो ना, यू इज नॉट अ वॉवल साउंड, द वॉवल साउंड इज ऊ, नॉट यू। जब आप यू बोलते हो तो य की साउंड आती है पहली, लेकिन एक्चुअली जो वॉवल साउंड आती है वो होती है ऊ। तो अ, ई, आई, ओ, ऊ, ये 5 साउंड होते हैं जिनके आगे वॉवल लगता है, एन लगता है, जिनको वॉवल साउंड्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये है एक्चुअली रूल। अब आपने बचपन से पढ़ा होगा आर के सामने, ऑनरेबल के सामने, इनके आगे एन क्यों लगता है? बोलते सर एच साइलेंट है। एच साइलेंट होने से क्या हुआ? साउंड देखो क्या है, आ, आर, ओ, ऑनरेबल। और वहीं पे जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि अनियन, सॉरी, जैसे मैं बोलता हूँ वन, वन के आगे क्या लगता है? वन तो ओ से शुरू हो रहा है, लेकिन अ वनडे मैच होता है, एन वनडे मैच होता है, अ वनडे मैच होता है। क्यों होता है भाई? वन तो ओ से शुरू हो रहा है। साउंड देखो, वन बोलते हुए पहली साउंड क्या आ रही है? वी, वन, वी। लेकिन वही ओ से शुरू होने वाला अनियन, उसके आगे एन लगता है, या एप्पल उसके आगे एन लगता है। क्यों? क्योंकि साउंड क्या है? अ, एप्पल, अनियन। तो गेम यहाँ पे साउंड का है, ना कि लेटर का या वॉवल का या और मतलब कॉन्सोनेंट का। ठीक है, इसमें गेम होता है वॉवल साउंड्स का। और वॉवल साउंड्स कौन सी होती हैं? हिंदी वाली, अ, ई, आई, ओ, ऊ। याद रखना। तो हम क्या बोलते हैं? शी इज अ यूरोपियन। यूरोपियन, अ यूरोपियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूरोप, यूरोप बोल के देखो एक बार, यूरोप, य की साउंड आती है। ही, दिस इज अ यूनिक बुक, अ यूनिक क्यों बोलते हैं? जबकि यू तो वॉवल है। जब आप यूनिक बोलते हो तो पहली साउंड य की आती है, य, यूनिक। लेकिन वही यू से शुरू होने वाला अम्ब्रेला, उसके आगे एन लगता है, आई, आई हैव एन अम्ब्रेला। या ऊबर बोल लो आप, आई टुक एन ऊबर। तो ऊबर, ऊ की साउंड होती है जो वॉवल साउंड होती है, समझना। अब ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझाऊंगा इसको, इस पूरी वीडियोस में, ताकि आपको इंग्लिश में आज के बाद कोई भी रटना ना पड़े, आपको सीख के कॉन्सेप्चुअली आप खुद को एम्पावर कर पाओ। ये मेरा पर्सपेक्टिव है गाइज। तो ये थी आपकी टोटल वो 8 कैटेगरीज। ठीक है, जिसके अंदर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के लिटरली,
ठीक है, लिटरली जितने भी 3.5-4 लाख वर्ड्स हैं वो सारे आ जाते हैं। अब देखना गाइस, अगर आपको ये समझ आ गई है, नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स, वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फ्रेंड जो वर्ब में क्वालिटी ऐड करता है, कौन, एडवर्ब। ठीक है, नाउन का छोटा भाई प्रोनाउन, जो क्या करते हैं, नाउन को रिप्लेस करके उनकी जगह पे आ जाते हैं। फिर नाउन ने भी एक फ्रेंड बुला लिया था एडवर्ब की चीटिंग करके, एडजेक्टिव, वो भी क्या ऐड करते हैं, क्वालिटी। लेकिन ट्विस्ट क्या आया था, हमें पता चला एडजेक्टिव और एडवर्ब तो बचपन के फ्रेंड्स हैं, मतलब ये 99.9% वर्ड शेयर करते हैं आपस में। वही वर्ड जो किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव है, वो अपने पीछे एल वाई लगा के दूसरे सेंटेंस में क्या बन सकता है, एडवर्ब बन सकता है, एंड वाइस वर्सा। फिर हमने 3 न्यूट्रल बच्चे देखे, कौन से, पहला प्रेपोजिशन जो क्या बताते हैं, किसी की पोजीशन बताते हैं, दूसरा कंजंक्शन जो क्या करते हैं, जंक्शन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर्टिकल्स, कौन से, ए, एन और द। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स मैंने बताया ये हम नहीं पढ़ते क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आते। देखना गाइस, ये 8 कैटेगरीज जो हमने पढ़ी अब आपके सामने जो है, इनके अंदर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का लिटरली हर वर्ड आ जाता है। कोई सेंटेंस पढ़ के देख लो, आप न्यूज़पेपर उठा लो और देखो आप उसमें हर वर्ड को आइडेंटिफाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ द प्राइम मिनिस्टर गेव अ स्पीच इन दिल्ली, ठीक है, या द प्राइम मिनिस्टर गेव अ स्पीच इन, हाँ चलो इन दिल्ली सिंपल लगता है, द प्राइम मिनिस्टर गेव अ स्पीच इन दिल्ली। द क्या है, आर्टिकल, प्राइम मिनिस्टर नाउन, गेव, गेव गिवन वर्ब, एक्शन वर्ब, अ आर्टिकल, स्पीच एक भाषण दिया उन्होंने, स्पीच क्या है, नाउन, इन क्या है, प्रेपोजिशन, इन दिल्ली, दिल्ली क्या है, नाउन। कोई सेंटेंस लो जो आपके मन में आ रहा है, आप देखो उसमें आप हर वर्ड को आइडेंटिफाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये है गाइस आपकी ग्रामर की टेक्निकलिटी जो आपको अब समझनी है, कि अगर आप ये अच्छे से समझ जाओगे तो आप ग्रामर को कंट्रोल कर पाओगे आज के बाद, कि हर सेंटेंस में सिर्फ उसका पता है आप क्या करते हो गाइस, हमने सेंटेंस पढ़ा द प्राइम मिनिस्टर गेव अ स्पीच इन दिल्ली, हम हिंदी करते हैं बस दिमाग में इसकी, कि प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली में एक स्पीच दी, ये हिंदी होगी इसकी, लेकिन टेक्निकलिटी कभी सोची कि द क्या है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, गेव क्या है, और ऐसे आप ग्रामर को कंट्रोल कर पाओगे। अगर आपको सही में इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप करना है, दिस इज व्हाट यू नीड टू डेवलप फर्स्ट ऑफ ऑल, कि अपने बेसिक्स को स्ट्रांग बनाओ, उससे आपको आपकी इंग्लिश कल्मिनेट होगी, उससे उससे आपकी इंग्लिश निकल के बनेगी। अब तक तो जो आपने सीखा है वो आसपास में जो पढ़ा है उससे सीखा है, लेकिन अब जो आप सीखोगे वो अपने खुद की अंडरस्टैंडिंग से सीखोगे। और अगर आपको ये समझ आया, ये कहानी अच्छी लगी, तो ये कहानी कहीं नहीं मिलेगी आपको, कोई किताब में नहीं मिलेगी, इसलिए मेरी बनाई हुई है। मैं अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए पिछले 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो ओवर द ईयर्स मैंने भी बनाई है शॉर्टकट्स, ताकि मैं लैंग्वेज को सीखना ईजी बना पाऊँ आपके लिए। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ऐसे ही आप कंटिन्यू कर सकते हो मेरे साथ ये लेक्चर्स, एंड यू विल बेनिफिट अलॉट फ्रॉम देम। तो ये थे गाइस आपकी ग्रामर की कहानी। तो किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड जो यूज होते हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ रोहित इज प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, रोहित क्या है, प्रॉपर नाउन, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग क्या है, एक्शन वर्ब, रोहित इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल क्या है, अगेन नाउन, कॉमन नाउन, स्पोर्ट का नाम है, राइट। तो रोहित इज प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, इन क्या है, प्रेपोजिशन, द क्या है, आर्टिकल, और पार्क क्या है, कॉमन नाउन। हर वर्ड को, हर सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पाओगे अब आप। तो ये है ग्रामर की बेसिक्स। सोचो गाइस, ये सिखाने में उन्होंने 8 साल लगा दिया आपको, और उसके बाद भी नहीं सिखा पाए वो आपको। यही 8 कैटेगरी सिखाई है उन्होंने ग्रामर में, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सिखाया वो आपको। लेकिन सोचो आपको यही याद नहीं है आज तक, तो फिर ग्रामर कहाँ से, इंग्लिश कहाँ से डेवलप होगी आपकी, समझ आ रहा है। चलिए, अब गाइस हमने वर्ड्स को तो आइडेंटिफाई करना सीख लिया, अब उससे एक स्टेप आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि कैसे हम वर्ड्स को जोड़ते हैं, ताकि अब वर्ड, हम सिर्फ वर्ड्स तो नहीं पढ़ते लैंग्वेज में, वर्ड्स को कनेक्ट करके क्या बनता है, एक सेंटेंस। और हमें एग्जाम में सेंटेंसेस पढ़ने होंगे वहां पे। तो सेंटेंस क्या होता है गाइस, सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंस या सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, सेंटेंस और सेंटेंसेस की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स which when put together convey, a collection of words which when put together convey a logical and rational information to the reader। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या मतलब है, मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे ये चीज। टू द रीडर या लिसनर, रीडर बोल लो, या अभी हम एग्जाम में तो हमें पढ़ना ही होता है, बट कोई सुनने वाला भी है तो उसके अकॉर्डिंग भी। तो सेंटेंस की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है गाइस, सेंटेंस या सेंटेंसेस आर बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, के मतलब वो वर्ड्स को जोड़ के
इस तरह से रखना कि जब वो इकट्ठा आए, पढ़ने वाले को या सुनने वाले को एक लॉजिकल या रैशनल इंफॉर्मेशन कन्वे हो। ठीक है, देखो अकेला राम या अकेला रोहित कोई सेंटेंस नहीं है, अकेला रीना या अकेला प्लेइंग कोई सेंटेंस नहीं है, लेकिन रीना इज प्लेइंग फुटबॉल, अब रीना अलग वर्ड है, इज अलग वर्ड है, प्लेइंग अलग वर्ड है, फुटबॉल अलग वर्ड है, लेकिन जब हमने उनको कंबाइन करके बनाया, कंबाइन करके रखा, वो क्या बने, एक सेंटेंस बना। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच व्हेन पुट टुगेदर कन्वे अ लॉजिकल और रैशनल इंफॉर्मेशन टू द रीडर और टू द लिसनर, दैट्स व्हाट वी कॉल अ सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स हमने समझ लिए, नाउन ये होता है, एक्शन वर्ब ये होती है, हेल्पिंग वर्ब ये होती है, ये प्रेपोजिशन होता है, ये समझ आ जाएगा। लेकिन अब सीखते हैं कि उनको किस लॉजिकल वे में रखा जाता है ताकि हम एक सेंटेंस क्रिएट कर पाए। मतलब सेंटेंस को क्रिएट करने का कोई कोई सीक्वेंस होता है क्या गाइस? जब जब मतलब कहने का मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हो, क्या सेंटेंस को किसी सीक्वेंस में रखते हो, वर्ड्स को किसी सीक्वेंस में रखते हो, या बस ऐसे ही जोड़ में चिपका देते हो? नहीं सर, सीक्वेंस में रखते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला रोहित इज गोइंग टू दिल्ली, क्या इस सेंटेंस को हम इसके अलावा और किसी सीक्वेंस में बना सकते हैं? मैंने एग्जांपल देखना, गोइंग टू रोहित दिल्ली इज बन सकता है, दिल्ली इज टू गोइंग रोहित नहीं, रोहित दिल्ली इज गोइंग टू नहीं, इज टू दिल्ली रोहित गोइंग नहीं सर, नहीं, एक ही सीक्वेंस बन रहा है, क्या रोहित इज गोइंग टू दिल्ली। तो क्या सीक्वेंस है जो आप फॉलो करते हो जब आप एक सेंटेंस बनाते हो? तो पहले यूनिवर्सल सीक्वेंस समझो गाइस। 99% सेंटेंसेस जो हैं, आप देखो ये सीक्वेंस हर हर लैंग्वेज में होता है, हिंदी में भी था। हिंदी में याद है आपने वो किया था, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान में हरे अधिकरण, ये वो किया था हमने, बट वो हिंदी में तो चलो बहुत अजीब सा था, बट इंग्लिश में बड़ा सिंपल होता है कि 99% जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस सीक्वेंस में बनाए जाते हैं? वो सीक्वेंस बड़ा सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। सबसे पहले सेंटेंस में क्या आता है? सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब, और फिर आता है, इसको हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं या इसको हम प्रेडिकेट भी बोल देते हैं। अगर आप किसी बुक में पढ़ोगे ना, बुक से पढ़ोगे तो ये प्रेडिकेट लिखा मिलेगा, बट मैं इस वर्ड को प्रेफर नहीं करता। क्यों कंफ्यूज करना है अपने आप को? सिंपल रखो, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट कौन होता है गाइज? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, सब्जेक्ट होता है कर्ता, जो काम करता है, डूअर ऑफ द एक्शन, राइट? यही सुना आपने आज तक? गलत। सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन नहीं होता गाइज। सब्जेक्ट इज, जैसे एग्जांपल देता हूँ गाइज, मैंने बोला इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इसमें कौन एक्शन कर रहा है? कोई एक्शन हो रहा है इस सेंटेंस में? नहीं सर, तो सब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब इस सेंटेंस में? फिर नहीं सर, है, इंडिया है, तो फिर सब्जेक्ट, अगर इंडिया है तो फिर वो तो कोई एक्शन नहीं कर रहा। तो अब समझना, ये गलत डेफिनेशन सिखाई गई है आपको, बचपन से रटाई गई है इनफैक्ट, कि सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, कर्ता। अब हिंदी में भी तो कर्ता सुन के वो होता है ना, कर्ता ने कर्म को जो काम किया है। कर्ता का मतलब वहां काम करने वाला नहीं होता, कर्ता का मतलब होता है कर्ता धर्ता, मतलब ऑनर ऑफ द सेंटेंस। तो सब्जेक्ट होता है गाइस, चाहे वो काम करे या चाहे वो काम ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्जेक्ट होता है जिसके लिए कोई सेंटेंस बनाया गया है, जिसके लिए कोई बात बोली गई है, जिसके लिए कोई सेंटेंस क्रिएट किया गया है, वो होता है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट। चाहे वो काम करे या चाहे वो काम ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं बोलता हूँ रोहित इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इसमें कोई काम नहीं कर रहा रोहित, लेकिन सब्जेक्ट रोहित है। एंड रोहित इज वर्किंग वेरी हार्ड, इसमें वो काम कर रहा है, तो भी सब्जेक्ट कौन है? रोहित ही है। तो सब्जेक्ट होता है जिसके लिए सेंटेंस बनाया जाता है। फिर आती है उसकी वर्ब, जो वो काम कर रहा है। अब वर्ब भी हमने किया था ना, 2 तरह की होते गई, देखना, हेल्पिंग वर्ब और फिर एक्शन वर्ब। अब इसमें चॉइस होते हैं गाइस, अगर वो कोई काम नहीं कर रहा तो सिर्फ आपको क्या मिलेगी? हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैं बोलता हूँ रोहित इज अ गुड बॉय, ठीक है, रोहित इज अ स्मार्ट बॉय, ठीक है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, रीना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो जब कोई काम नहीं हो रहा तो सिर्फ क्या मिलेगी? हेल्पिंग वर्ब। और कोई काम हो रहा है, सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, तो आपको साथ में क्या मिल जाएगी? एक्शन वर्ब। जैसे रोहित इज प्लेइंग फुटबॉल, रोहित वॉज ड्राइविंग रैशली, रीना वॉज डांसिंग ब्यूटीफुली। तो अगर एक्शन हो रहा है तो एक्शन वर्ब मिल जाएगी, लेकिन एक्शन वर्ब, अगर एक्शन नहीं हो रहा तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये आती है आपकी वर्ब, जो आपको एक्शन होता हुआ बताती है या कोई आपका टेंस बताती है कि किस टेंस का सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। और ऑब्जेक्ट कौन होता है गाइस? ऑब्जेक्ट में भी तो हमने ये सिखाया गया था ना हमें बचपन से, सब्जेक्ट काम करने वाला और ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जाता है। रॉन्ग। सब्जेक्ट ऑनर ऑफ द सेंटेंस, और ऑब्जेक्ट जो होता है गाइस, ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो सेंटेंस को इलेबोरेट करने के लिए डाली जाती है, सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए डाली जाती है। देखना गाइस, अगर मैं सेंटेंस यहाँ पे बोल देता रोहित इज प्लेइंग, क्या सेंटेंस गलत होता गाइस? देखना, अगर मैं यहाँ पे एक्शन ही ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने बोला रोहित इज प्लेइंग, क्या ये सेंटेंस गलत था?
यहां तक अगर सेंटेंस था, क्या सेंटेंस गलत है? इनकम्प्लीट है किसी सेंस में? रोहित इज प्लेइंग, रीना इज स्लीपिंग, ही इज वर्किंग, नहीं ना, सेंटेंस तो ठीक है, गलत तो नहीं है। लेकिन अब मैंने अगर बोला रोहित इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल ने क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन डाली, क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। अगर मैं फुटबॉल की जगह क्रिकेट लिख देता, क्या सेंटेंस पे कोई फर्क पड़ता? नहीं, सिर्फ क्या इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती, क्या खेल रहा है? क्रिकेट। अगर मैं क्रिकेट की जगह बास्केटबॉल लिख देता तो भी सिर्फ क्या चेंज हो रही है? इन्फॉर्मेशन। चलो और देखते हैं, मैंने बोला अगर मैं ये लिख देता रोहित इज प्लेइंग इन द पार्क, क्या रोहित इज प्लेइंग पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, सिर्फ क्या चेंज होगी? इन्फॉर्मेशन, कि कहाँ खेल रहा है? पार्क में खेल रहा है। रोहित इज प्लेइंग विद मी, किसके साथ खेल रहा है? मेरे साथ खेल रहा है। तो समझो ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है? सेंटेंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन डालना, ठीक है, ना कि कोई जिस पे काम किया जा रहा है ऐसे कुछ हो रहा है, ये गलत डेफिनेशन सिखाई गई है। तो सब्जेक्ट इज द ऑनर ऑफ द सेंटेंस, जिसके लिए सेंटेंस बना है। वर्ब जो उसका टेंस, मतलब जो उसकी स्टेट ऑफ बीइंग है, या जो वो एक्शन कर रहा है वो बताती हैं, ठीक है। अगर एक्शन कर रहा है तो एक्शन बताएगी, एक्शन नहीं कर रहा है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रहेगी। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या बताता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन के इसके बियॉन्ड क्या बात की जा रही है। तो ये होता है गाइस एक नॉर्मल सेंटेंस का सीक्वेंस, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सीक्वेंस। नॉर्मली हम यही सीक्वेंस फॉलो करते हैं। आपने अगर ये बोलना कि वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोलोगे प्रिपेयरिंग इज फॉर द एग्जाम इज ही, नहीं, क्या बोलोगे? ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तो सबसे पहले किसको रखा जाता है सेंटेंस में? सबसे आगे सब्जेक्ट को, फिर आती है उसके बाद उसकी वर्ब, और फिर आता है उसका ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सीक्वेंस। समझ आ रहा है गाइस? अब ये ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि आगे चल के हम इसको बहुत यूज करने वाले हैं इस चीज को। तो ये है हमारा यूनिवर्सल सीक्वेंस। मैंने बोला 99% सेंटेंसेस इस सीक्वेंस में बनते हैं। बोला सर आप 99 क्यों बोल रहे हो, 100% क्यों नहीं बोल रहे? फिर अगर यूनिवर्सल सीक्वेंस ही है तो ये, तो मैंने बोला 99 क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द सेंटेंसेस इससे बनते हैं। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि सारे बनते हैं, कुछ ऐसे और सेंटेंसेस हैं जो ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करते। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस बता रहा हूं अब मैं आपको कि क्या स्ट्रक्चर लेते हैं सेंटेंसेस। अब समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। देखना, जैसे मैंने आपको बताया सेंटेंस, जिसको सेंटेंस बोल लो या इसको ना हम क्लॉज भी बोल सकते हैं गाइस। क्लॉज एक वर्ड यूज होता है, सुनेगा आपको इंग्लिश लैंग्वेज में। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज एक बेसिकली एक सिंपल सेंटेंस को ही क्लॉज बोलते हैं। सिंपल सेंटेंस का क्या मतलब है गाइस? देखना, क्लॉज क्या होता है? सेंटेंस के जैसे सेंटेंस मस्ट हैव अ कंप्लीट आइडिया दैट स्टैंड्स अलोन, इसको हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। मतलब जब सेंटेंस में आपको एक सब्जेक्ट मिले, एक वर्ब मिले और एक ऑब्जेक्ट मिले, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन था? ही ऑब्टेन्ड हिज डिग्री। वर्ब क्या थी? ऑब्टेन्ड। और हिज डिग्री क्या थी? ऑब्जेक्ट। तो जब सेंटेंस में आपको एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट मिलता ना, इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस या इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये होता है सिंपल सेंटेंस, जिसमें आपको एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके बाद अगर मैं इसमें एक और सेंटेंस जोड़ दूं, जैसे ही ऑब्टेन्ड हिज डिग्री एंड ही ज्वाइंड द कंपनी लास्ट ईयर, अगर ऐसे दो क्लॉजेस जोड़ दूं इकट्ठा एक ही सेंटेंस में, ये बन जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बीच में फर्क समझना। सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें आपको एक सब्जेक्ट मिलता है, एक वर्ब मिलती है और हो सकता है एक ऑब्जेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलता है। तो सेंटेंस क्या सीक्वेंस फॉलो करता है जो मैंने अभी आपको समझाया? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जब तक आपको सिर्फ यहीं तक मिलता है ना, ये होता है एक सिंपल सेंटेंस। लेकिन इसके साथ अगर आपको एक और क्लॉज मिल जाएगा ना जुड़ के, जिसमें एक और सब्जेक्ट होगा, एक और वर्ब होगी और हो सकता है एक और आपको ऑब्जेक्ट मिल जाए, ये बन जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो पहले आपको सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बीच में फर्क समझना है। तो सिंपल सेंटेंस को हम क्या बोल देते हैं? दिस इज क्लॉज नंबर 1, ठीक है, एंड दिस इज क्लॉज नंबर 2। ये क्लॉज होते हैं आपके। इंडिपेंडेंट सेंटेंस को क्लॉज बोलते हैं। अगर एक से ज्यादा जुड़ जाए तो फिर वो मल्टीपल क्लॉजेस बन जाते हैं, वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। तो पहले यही समझना है सिंपल सेंटेंस क्या होता है? देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट, वन प्रेडिकेट एंड वन वर्ब, वन फाइनाइट वर्ब इन अ सिंपल सेंटेंस। इट कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे शी सिंग्स, शी सिंग्स इंडियन म्यूजिक, ये क्या हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। द डॉग रैन आफ्टर द बॉल, डॉग सब्जेक्ट हो गया, रैन वर्ब होगी, आफ्टर द बॉल ऑब्जेक्ट हो गया। ये होता है आपका एक सिंपल सेंटेंस। लेकिन अगर हम व्हेन देयर आर टू और मोर इंडिपेंडेंट मेन क्लॉजेस इन अ सेंटेंस, दे बिकम अ कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। इसमें आपको कंजंक्शन मिलेगा, कॉमन, कॉमा, कॉलन, ऐसे कुछ मिलेंगे जोड़ने के लिए। जैसे देखना, इट रेन्ड हैविली थ्रू आउट द डे, ये पहला क्लॉज हो गया। फिर कॉन्सिक्वेंटली कंजंक्शन आ गया, द सिटी वॉज फ्लडेड, ये दूसरा सेंटेंस बन गया। ये होता है कंपाउंड सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस जब आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट मिले, और कंपाउंड सेंटेंस जहां पे आपको मल्टीपल क्लॉजेस मिले,
ठीक है, जैसे द थीफ रैन टू एस्केप, के जो चोर था वो बचने के लिए भागा, बट अब ये कंजंक्शन आ गई, बट द पुलिस कॉट हिम, लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया। ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस, दूसरा क्लॉज आ गया यहाँ पे। तो जब व्हेन देयर आर मल्टीपल क्लॉजेज इन अ सेंटेंस इट बिकम्स अ कंपाउंड सेंटेंस। इसमें दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे द विंटर सेट इन, ठंड बढ़ चुकी थी, इट वॉज कोल्ड मतलब टेम्परेचर बढ़ चुका, सर्दियां आ चुकी थी, ठंड बढ़ चुकी थी, एंड वी टुक आउट विलन्स फ्रॉम द कबर्ड, और हमने अपने गर्म कपड़े निकाल लिए थे। तो दो से ज्यादा भी क्लॉजेस हो सकते हैं एक सेंटेंस में, ऐसी बात नहीं है, बट एक क्लॉज होगा वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस, और एक से ज्यादा क्लॉजेस जुड़े होंगे वो बन जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं कि जो मैं आपको बता रहा था कि सर आपने बोला 99% सेंटेंसेस में तो ये सीक्वेंस फॉलो होता है, कौन सा, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर कौन सा सेंटेंस है जो ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करते, अब वो देखते हैं गाइस। सबसे पहला असर्टिव सेंटेंसेस, जिसको हम 99% वाला बोलते हैं, ये है 99% वाला सीक्वेंस जो फॉलो करते हैं। ये कौन सा सेंटेंस होते हैं, जो हम कोई डिक्लेरेशन करने के लिए, या कोई स्टेटमेंट देने के लिए, कोई ओपिनियन देने के लिए, कोई सजेशन देने के लिए, कोई कहावत बोलने के लिए, या कोई सच्चाई बात बोलने के लिए यूज करते हैं। देखना, जैसे द टीचर इज गोइंग टू द क्लासरूम, ये है आपका स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट, कोई भी बात बोल रहे हो। रोहित इज प्लेइंग फुटबॉल, ये सिंपल स्टेटमेंट है। सुनीता इज अ गुड सिंगर, ये मेरा ओपिनियन है। देखो गाइस, इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं आ रही, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आई और उसके बाद एडजेक्टिव आ गया। सुनीता इज अ गुड सिंगर, शी इज अ गुड ह्यूमन बींग, रोहित इज अ स्मार्ट बॉय, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। ये क्या है, मेरे ओपिनियन या डिक्लेरेशन करना। ये भी यही सीक्वेंस फॉलो करते हैं। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमेशा सच रहता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। तो ये होते हैं गाइस आपके जो 99% सेंटेंसेस होते हैं जो अपनी डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं। आपने कोई स्टेटमेंट देनी है, कोई बात बतानी है, कोई ओपिनियन रखना है, कोई डिक्लेरेशन करनी है, कोई फैक्ट बताना है, या कोई कहावत बतानी है, वो सारे सीक्वेंस, ये सारे सेंटेंसेस जो होते हैं वो आपका जो यूनिवर्सल सीक्वेंस होता है वो फॉलो करते हैं। कौन सा, सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन अब चलते हैं कौन सा सेंटेंसेस है जो ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करते हैं। पहला, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन से, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सीक्वेंस क्या होता है गाइस, देखना, नॉर्मल सेंटेंस का सीक्वेंस क्या था, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सीक्वेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज होगी, हमेशा याद रखना। हेल्पिंग वर्ब पहले यूज होगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर है तो एक्शन वर्ब है तो अगर एक्शन वर्ब आएगी, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और पीछे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने क्या कहा था, रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट, यही था ना। अब इसी सेंटेंस का मुझे इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या बन जाएगा, देखना गाइस, रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट का इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन क्या बनेगा, इज रोहित प्लेइंग क्रिकेट। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं गाइस, जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई सवाल पूछते हैं, और इनका सीक्वेंस क्या होता है, सिर्फ फर्क क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है जो पहले सब्जेक्ट से बाद आता था, ये अपनी जगह चेंज करके कहाँ आ जाता है, सब्जेक्ट से पहले लग जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला शी इज क्राइंग, वो रो रही है, जैसे हम क्लास में नहीं बोलते थे कि मैम वो रो रही है, शी इज क्राइंग। तो मैम जब पूछ रही है कि वो क्यों रो रही है, तो इंटेरोगेटिव में क्या बनेगा, वाई शी इज क्राइंग या वाई इज शी क्राइंग। देखो, शी इज क्राइंग का इंटेरोगेटिव क्या बन गया, वाई इज शी क्राइंग, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, ठीक है, फिर सब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद एक्शन वर्ब आया। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या क्या सीक्वेंस फॉलो करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले यूज किया जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। ये है जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का सीक्वेंस याद रखना। जैसे एग्जांपल देखना, हु इज योर फादर, ठीक है, एग्जाम्पल दोगे तो फिर आंसर दोगे, माई फादर इज दिस। ठीक है, वेन आर यू गोइंग टू लंडन, वेन आर पहले आ रहा है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, फिर एक्शन वर्ब आ रही है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा तो क्या है, वेन आर यू गोइंग टू लंडन, सिंपल सेंटेंस बोलोगे तो क्या आएगा, आई एम गोइंग टू लंडन नेक्स्ट मंथ। ठीक है, डू यू हैव एनी मनी, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्शन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आर यू फीलिंग ऑल राइट, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्शन वर्ब और फिर उसका एडवर्ब। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज करना होता है, ये होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंसेस। डेमोन्स्ट्रेटिव कौन से होते हैं गाइस, जिन सेंटेंसेस में हम कोई चीज डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं सामने वाले को कि ये है मेरी बात या ये है वो चीज। अब इनकी शुरुआत ये आपको ये 6-7 वर्ड से याद रखना है गाइस। कौन से, देयर, हेयर, दिस, दैट, दीज,
दोज या इट। जो सेंटेंस इनसे स्टार्ट होते हैं ना गाइस, याद रखना वो कौन से सेंटेंस होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंस, जो कुछ दिखाने के लिए यूज होते हैं। जैसे मैंने बोलता हूँ इट इज अ ब्यूटीफुल डे, यार कितना अच्छा दिन है। इट्स अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, कितनी अच्छी पेंटिंग है। दिस इज माई पेन, दिखा के बोल रहा हूँ ना गाइस, शो करके बोल रहा हूँ, दिस इज माई पेन। बिना दिखाई बोल सकता हूँ दिस इज माई पेन, क्या बोलोगे सर कौन सा? मैं आपको बोल रहा हूँ दिस इज माई कार, बोले सर कहाँ है, कौन सी गाड़ी? लेकिन मैं खड़े होकर फिर पॉइंट आउट करके बता सकता हूँ दिस इज माई कार, दिस इज माई रूम, दैट इज योर बैग, दीज आर माई क्लोथ्स, दोज आर माई फ्रेंड्स, या इट वॉज अ गुड मूवी। तो इनसे जो सेंटेंस शुरू होते हैं ना गाइस, ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंसेस। अब इनमें क्या होता है, इनमें पहले आपको ये वर्ड देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपका सीक्वेंस जो होता है फिर वो शुरू होता है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद आपकी वर्ब आती है। जैसे दिस ब्लू कार नीड्स टू बी वॉश्ड नेक्स्ट, दैट मेटल रॉड शुड वर्क, दीज ऑरेंजेस आर डिलिशियस, दोज पीपल वर हेयर फर्स्ट, या इट इज अ ब्यूटीफुल डे। तो इन सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट शुरुआत में नहीं मिलेगा, इन सेंटेंसेस में आपको डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड पहले मिलेगा फिर सब्जेक्ट आएगा। जैसे मैंने बोला देयर इज समवन एट द डोर, या दिस इज माई कार। अब दिस इज माई कार में देखना गाइस, दिस पहले डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, और फिर आया मेरा सब्जेक्ट, कौन, कार। तो पहली बार देखने को मिल रहा है आपको सब्जेक्ट कहाँ हो सकता है, सेंटेंस के एंड में हो सकता है। दैट इज माई रूम, रूम एंड में आ रहा है क्योंकि बात सब्जेक्ट किसकी हो रही है, कार की। दिस इज माई कार, दैट इज माई रूम, बात किसकी हो रही है, रूम की। तो डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंसेस है जहां पे आपको सब्जेक्ट आपको एंड में या बीच में देखने को मिल सकता है। देयर इज समवन एट द डोर, सब्जेक्ट क्या है, कौन है यहाँ पे, समवन, देयर सब्जेक्ट नहीं है, समवन सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट बीच में या एंड में जाके ढूंढना पड़ता है। ठीक है, आपको ये देखना होता है सेंटेंस किसके लिए बना है, वो बनता है, निकलता है सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो ये तीन सीक्वेंस है जो आपको याद रखने का, इस कौन से, यूनिवर्सल सीक्वेंस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव, उसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। और डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसमें आपको डेमोन्स्ट्रेट करते हुए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ढूंढना पड़ेगा सेंटेंस के बीच में या मिडल में, मतलब या एंड में। ठीक है, अब दो सीक्वेंस और होते हैं लेकिन आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आते, बट बता देता हूँ। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें आप कोई ऑर्डर देते हो, ठीक है, ये हम रिटन सेंटेंसेस में यूज नहीं करते, ये वर्बल सेंटेंसेस होते हैं जो बोल के सामने वाले को बोले जाते हैं। कोई ऑर्डर देते हो, गेट आउट फ्रॉम द रूम, या जैसे आर्मी वाले, आर्मी मेजर बोल रहे हैं मार्च अहेड, कमांड दे रहा है, वो एडवाइस दे रहा है। जैसे मम्मी ने बोला बेटा ईट हेल्दी फूड, ये सामने आमने सामने की बात है ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने बोला प्लीज हेल्प मी, या कोई सजेशन दे रहे हैं, जैसे मैंने बोला लेट्स गो फॉर अ वॉक। ये आपके एग्जाम में नहीं आते क्योंकि ये फॉर्मल सेंटेंसेस नहीं होते, ये वर्बल कम्युनिकेशन होती है। तो आप बेशक इनको पढ़ लो, ठीक है, ये ऑर्डर देने वाले, कमांड देने वाले, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आते, लेकिन इनको पढ़ने की ज़रूरत, खासी ज़रूरत नहीं होती आपको। और लास्ट भी एक्सक्लेमेटरी, जो मैंने आपको बताया था ना कि आठवीं कैटेगरी जो छोड़ देते हैं, जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करा रहा था कि कौन से आठ कैटेगरी, आठवीं कैटेगरी जो थी मैंने बताया था एक्सक्लेमेशन वाले, ये एग्जाम में नहीं आते क्योंकि ये भी इमोशन वाले सेंटेंसेस होते हैं। जैसे अलास, हुर्रे, ओ माई गॉड, व्हाट अ शेम, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, ये एग्जाम में नहीं आते, ये फॉर्मल सेंटेंसेस नहीं होते, ये वर्बल कम्युनिकेशन के होते हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ जो अभी हमने किया आपका ये इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, इनको आप स्किप कर सकते हो। पहले तीन है जो आपको याद रखने, कौन सा, जो नंबर वन था एसर्टिव, जिसमें हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव, जिसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज होती है। और डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसमें आपको डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड स्टार्टिंग में मिलता है, सब्जेक्ट आपको बीच में या एंड में ढूंढना होता है। तो ये तीन तरह के सीक्वेंस हैं जो आपके काम के हैं, जो आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं गाइस। तो आज हमने उतनी ग्रामर सीख ली है, अगर आप ये इसको यूज करोगे, देखो गाइस मैंने रूल्स नहीं रटाऊंगा मैं आपको, मैं रूल रटाने नहीं आया हूँ। अगर रूल नहीं रटने हैं तो फिर किताब खरीद लो और घर से बैठ के पढ़ लो यार, इतनी तो इंग्लिश आती है आपको। रूल रटने हैं तो वो कर लो आप, लेकिन रूल्स नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, एग्जाम में उनका यूजेज, उनका प्रैक्टिकल मतलब यूजेज कैसे होता है या क्या गलती है, कैसे गलती ढूंढनी है, वो आपको पता होना चाहिए, और उसके लिए ये बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। समझ आ रहा है? तो आज हमने दो चीज़ें सीखी, पहला किस वर्ड को कैसे कैटेगराइज किया जाए, क्या नाउन होता है, वर्ब क्या होता है, वो कहानी याद रहेगी हमेशा। तो चैट बॉक्स में गाइज ज़रूर बताना अपना फीडबैक कैसा लगा आपको, कि वो कहानी आपके काम आई, आपको हेल्प करेगी या नहीं करेगी ज़िंदगी में आपको ग्रामर के लिए। तो डू शेयर योर इनपुट एंड फीडबैक्स विद मी। और फिर हमने सीखा कि उन वर्ड्स को हम कैसे एक सीक्वेंस में डाल के हम एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, अभी हमने बिल्कुल बेसिक सीखा है। अब हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे अपना जो एग्जाम के लिए जो टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
So guys, I hope you've understood each and every component of this chapter, and I hope this will help you in your preparation and in your journey ahead. So do leave a comment in the comment section of the video, and do let us know your experience about these videos, and do share if we can improve them by any means. Guys, if you wish to join us now, if you've understood the quality that we provide, the content that we have in our courses, so if you wish to join us in our courses, there is a very simple way of going about it, and we are offering special discounts on our courses. Now, guys, what you have to do is, although the link is given in the description of the video for our courses, but I'll show you a very simple way of going about it. You just have to visit your browser, any browser, Google or any browser that you have, and just type edutap.in, EDUPATAP, edutap.in, and just press enter and you'll land on our homepage. You'll see all the courses available to you here. Just click on the RBI Grade B courses and you'll see all the courses for RBI Grade B available to you. Now guys, we have a test series for phase 1 plus phase 2, as well as special test series for phase 2. So this is for those aspirants who are done with their preparation. But if you are starting with your preparation now you have your silver course for phase 2 plus interview preparation. You have your live classes, concept notes, summary sheets, mock tests and interview sessions for only phase 2, only for phase 2 and interview. But guys, if you're starting out from the from the very beginning, this is what you need. Gold course. This includes everything for your phase 1 as well as phase 2 plus your interview. So it includes all the live classes, concept notes, summary sheets, mock tests, current affair magazine, solved PYQs, chapter wise mock test, sectional test, current affairs mock test, full length test, interview preparation, and everything that you need to prepare for your exam, along with your doubt and query resolution. All your queries are resolved within 24 hours. So we are offering special discounts on these courses. Come explore your discounts, join us and streamline your preparation with us. And if you face any difficulty, any challenges regarding anything at all, please feel free to call us on this number, which is 8146207241 on your screen, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So guys, we wish you all the very best for your preparation. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So have a good day and happy learning to all of you.